So this is our workplace where we work. We are having a staff of 30 to 40 technicians. The lab is located at Chhatrapati Sambhaji Nagar in 3000 square feet area. We are having the state-of-the-art laboratory and we are dealing with all digital implant work mainly. This is my team. Why I am showing this video to you? This is not a promotional video, just to say we have to respect ourselves and otherwise then others will respect us. First अपन अपने काम की कदर करना चाहिए, अपने प्रोफेशन की कदर करना चाहिए तो लोग करेंगे. अपन हमेशा बोलते हैं यार डॉक्टर लोग अपने को वैल्यू नहीं देते, अपने को ऐसा समझते हैं कि जब भी आपने पेमेंट की बात है पहले दूध वाले का पेमेंट देंगे देन लैब का देंगे. Because we are not respecting ourselves, we have to respect ourselves, then doctors will respect us. Because we are the backbone of the dental practice. Without the dental technician, dentists can't do anything. कितना भी अच्छा सर्जन हो, कितना भी अच्छा डेंटिस्ट हो, without a good lab support, he is nothing. So we are the backbone of the dental practice. So try to respect ourselves first. See, the beautiful smile created for this patient. Is it possible without a technician? Here we are having the good surgeon, good implantologist, but because of the good technician, it is not possible for the dentist to deliver good smile to your patient. Okay. Today my topic is implant prosthetics. यहाँ पे कौन कौन implant prosthetics करते हैं लैब में? सभी लोग, right? It is a mixed crowd. जो beginners है, just start करना चाहते हैं, कुछ लोग एक्सट्रीमली गुड वर्क करते हैं इम्प्लांट प्रोस्थेटिक में, कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, राइट? इम्प्लांट डूइंग द इम्प्लांट वर्क. अभी मैं जब भी कोर्सेस लेता हूँ डॉक्टर्स के लिए इम्प्लांट प्रोस्थेटिक का, तो डॉक्टर की एक ही कंप्लीट करते हैं, हम इम्प्लांट तो बहुत करते हैं बोले, लेकिन क्या होता है हमारे एरिया में लैब सपोर्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि आवर लैब्स आर नॉट ट्रेंड इन दैट मच इन द इम्प्लांटोलॉजी. ओके, so I am here to just discuss with you the implant prosthetics in the simple way for the lab technicians who want to start implant prosthetics in their laboratory. Okay. This presentation is based more on the practical tips and tricks that is useful for the dental laboratory technicians in their practices. इम्प्लांट प्रोस्थेटिक, जब भी इम्प्लांट प्रोस्थेटिक की बात आती है तो पहले अपना दिमाग ऐसा सोचने लगता है कि अरे क्या करूँ. जब वर्क आता है देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी कंपोनेंट्स आर अवेलेबल, डिफरेंट कंपनीज आर अवेलेबल, कौन से टाइप का प्रोस्थेटिक दूँ, पहले सर पकड़ के बैठ जाता है टेक्नीशियन या डॉक्टर्स भी. सेम हैपेंस विद द डॉक्टर्स आल्सो. Making a proper treatment plan considering both surgical and the prosthetic part in mind is the key success for the implant prosthetics. But what happens often practitioners with dentists and implantologists tends to create a plan overlooking the basic principles of implant prosthetics. सब concentrate करते हैं implant surgical parts के ऊपर. Implant prosthetic is always neglected from the doctor's point of view. Everyone is interested in just placing the implants. पर the prosthetic they always rely on the dental laboratory. उनको लगता है अपने implant place करते हैं, impression लेके भेज लैब वाला बना के दे देगा, अपना काम हो जाएगा. It's the scenario of the market. इम्प्लांट सर्जिकल में जब डॉक्टर की बात आती है दे आर हैप्पी बिकॉज इम्प्लांट जैसे प्लेस करते हैं उनको बल्क में मनी आ जाता है. व्हेन इट कम्स टू प्रोस्थेटिक पार्ट्स देयर कंडीशन इज लाइक दैट, बिकॉज जब इम्प्लांट प्लेसमेंट में होता है अगर फुल माउथ के जैसे 2 घंटे में इम्प्लांट प्लेस करके फ्री हो जाते हैं दे अर्न द मनी. बट प्रोस्थेटिक की बात आती है तो दे रिलाई ऑन द लैबोरेटरी. वाई? क्योंकि बाद में पैसा तो कुछ आता नहीं, पेशेंट ने ऑलरेडी पे किया रहता है, दे आर मल्टीपल्स दे आर टू फॉलो. 1 महीना 2 महीना प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट चलेगा. But in reverse for laboratory, the implant prosthetic phase is most important. That is most money earning for the dental laboratories. Dental laboratory आपको क्राउन बेस तो सालों से करते आ रहे, कितना चार्ज करते हैं आप? 500, 600, 700. But implant is a specialized brand. There we can charge more to the doctors. We can charge 1500 for per crown, 2000 for the per crown, right?
So implant prosthetic face a money earning branch for the dental technicians. So try to do more implants work is the future of dentistry. See previously what happens, इम्प्लांट को प्लेस किया जाता था, दे आर कॉल्ड एज सर्जिकल ड्रिवन इम्प्लांटोलॉजी. डॉक्टर को जहाँ भी बोन मिला वहाँ पे इम्प्लांट प्लेस कर देते. दैट विल इंक्रीज द आवर हेडेक एंड दे कंप्लीटली रिलाई अपने पास इंप्रेशन लेके जा रहे हैं, मैंने तो इम्प्लांट डाल दिया, अब तू देख लिया उसमें प्रोसेस कैसे बनाना है. दैट द हेडेक ऑफ डेंटल लैबोरेटरी पर्सन्स. So we have to be more skillful in doing the implant prosthetic work. But nowadays that things are going simple way because of the development of the prosthetic driven implantology. Nowadays क्या होता है, पहले प्रोस्थेसिस प्लान किया जाता है, उसके बाद इम्प्लांट प्लेस करते हैं. तो इट्स आवर, दे आर मेकिंग आवर जॉब ईजीएस्ट टू मेक द गुड क्वालिटी प्रोस्थेसिस और लुकिंग प्रोस्थेसिस. It's not the individual job, it's a teamwork. What team includes? The first is the patient. Patient cooperation is most important for delivering the good prosthesis. नहीं तो क्या होता है, पेशेंट को लगता है कि मैंने 4-5 लाख रुपये डॉक्टर को दे दिए, मुझे जल्द से जल्द प्रोस्थेसिस चाहिए. But as a lab person, we need some time to deliver a good prosthesis. They have to follow a number of steps in that. Okay, second is the implant surgeon. Third is the prosthodontist. And of course, most important person is the lab guy or the lab technician to deliver a good prosthesis. It's a teamwork. Okay, and we have to follow a number of protocols. In conventional protocol, in clinician, what we have to do, we have to record the impression, impression verification, intraocular record, desetting trial, framework trial, second intraocular record, B trial, and final delivery of the prosthesis. We have to follow a list of the protocol. That is, we need 7 appointments to deliver a prosthesis. In lab, what we have to follow? Inspection of impression. जब भी आपके पास impression आते हैं तो पहले उसको चेक करना चाहिए. उसके बाद कनेक्टिंग द लैब एनालॉग, जिंजॉल मास्क फॉर्मेशन, मॉडल फैब्रिकेशन, जॉ रिलेशन रिकॉर्ड, अपॉइंटमेंट सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट बिलिंग, बैच पैटर्न. That whole number of steps, and each and every clinical laboratory step is most important in the implantology. Okay, because क्राउन ब्रिज में क्या होता है, एक अगर फिटिंग नहीं आ रही तो वी कैन मैनिपुलेट, क्राउन को घिसते हैं या प्रिपरेशन को मॉडिफाई करके हम फिटिंग करते हैं. बट इम्प्लांटोलॉजी एक पे एडजस्टमेंट अपन नहीं कर सकते. इम्प्लांट में नहीं बैठ रहा है, क्राउन में नहीं बैठ रहा है, टू रिपीट होल द थिंग स्टार्ट फ्रॉम द इम्प्रेशन. ओके, सो वी कैन टेक रिस्क एट एनी स्टेप. अगर आप जिस एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हो, यदि आप प्रैक्टिस इन द तालुका प्लेसेस और मेट्रो सिटीज और इन एनी प्लेस, जो भी आपके क्लाइंट्स है डॉक्टर्स, वी हैव मोर देन 100 क्लाइंट्स. हर एक क्लाइंट्स अलग अलग कंपनी के इम्प्लांट्स यूज़ करता है. क्राउन ब्रिज में क्या होता है, एक ही क्राउन प्रिपरेशन रहता है, अपन कास्टिंग करके दे देते हैं. इम्प्लांट में वैसा नहीं होता है. हर एक डॉक्टर 2-3 कंपनी के इम्प्लांट्स तो यूज़ करता है. द नंबर ऑफ कंपनीज आर मोर. अभी हमारे औरंगाबाद सिटी में मेजोरिटी 10 कंपनी के इम्प्लांट चलते हैं. तो आई शुड हैव नॉलेज ऑफ 10 कंपनीज. उसमें फिर कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं. दिस इज द लॉट, वी हैव टू मैनेज लॉट ऑफ इन्वेंट्रीज, अपॉइंटमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपॉइंटमेंट, इम्प्लांट कनेक्शंस, सो मेनी थिंग्स. तो लैब पर्सन को पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कौन से कंपनी के इम्प्लांट है, प्रोस्थेटिक कंपोनेंट्स क्या, व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स विद द कंपनीज, whether that the company is prosthetically compatible or not. Okay, for that we need a effective communication with the implant surgeon. जब भी आपके पास केस आता है तो आपको पूरा नॉलेज चाहिए. डॉक्टर क्या करता है, इंप्रेशन भेज देता है, उसको अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ पता नहीं रहते, बिकॉज दे आर लैकिंग द प्रोस्थेटिक्स. दे आर वेरी गुड एट द इम्प्लांटोलॉजी और द सर्जरी पार्ट. पर जब प्रोस्थेटिक पार्ट जो इंप्रेशन भेज देते हैं, दे कंप्लीट रिलाई ऑन द लैबोरेटरी पर्सन. उनको लगता है कि लैब वाले ने बोला कि कौन सा अपॉइंटमेंट चाहिए, whether to go for cemented prosthesis or screw retained prosthesis. Okay, so as a lab person we should know all the things with all the companies. जब इम्प्लांट की बात है, there are only 2 types of prosthesis. जब अपने पास वर्क आता है तो either go for the fixed restoration or either go for the removable restoration. That doctors tell you whether you want to go fixed restoration or removable restoration for that patient. But we have to follow all these steps while fabricating a prosthesis. What is important things, ease of fabrication. जो भी prosthesis fabricate करो easily होना चाहिए. Main important is the passivity of the framework. Whether you are doing the casting, whether you are going for the CAD/CAM or printing, your framework should be passive in the implant prosthetic. जब crown and bridge करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि टाइट फिटिंग चाहिए, डॉक्टर बोलते हैं टाइट फिटिंग चाहिए, बट दैट इज नॉट अप्लाई विद द इम्प्लांट प्रोस्थेटिक. योर फ्रेमवर्क शुड बी पैसिव.
good retention. Then that you can think about this whether you go for the cement retained crown or the screw retained crown. Occlusion is the most important part in the implantology. Aesthetic again patient demand and retrievability. Retrievability, what is retrievability? जब भी प्रॉब्लम आते तो आप इम्प्लांट प्रोस्थेसिस इजीली निकाल सकते हो. क्राउन ब्रिज में क्या होता है, क्राउन टूटता है या फिर क्राउन रिमूवर से निकलते हैं, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन द इम्प्लांटोलॉजी टू यूज द क्राउन रिमूवर फॉर रिमूविंग द प्रोस्थेसिस. तो रिट्राइबिलिटी ऑफ द प्रोस्थेसिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. According to MIS, they have proposed the 5 prosthetic options. They are called FP1, FP2, FP3 and RP4, RP5. What do you mean by FP and RP? FP means a fixed prosthesis and RP means a removable prosthesis. Okay? In FP1, we are replacing just the crown portion. In FP2, we are replacing the root portion. थोड़ा रूट कार्विंग वगैरह देते हैं. और FP3 we are replacing the gingival portion. अगर बोन लॉस ज़्यादा है तो we are adding the pink ceramic or pink gingiva to your prosthesis. Then these are the pictorial presentation. See, this one is the FP1, FP2 and FP3 along with the pink ceramics. Then in removable there are 2 types, RP4, RP5. What is by RP4? It is completely supported by the implant, just like a fixed prosthesis, but it is a removable. And RP5, it is called as the overdenture, just ball and socket, bar and clip overdenture. That is retained by the implant and supported by the soft tissue and the bone. That's what the RP5 prosthesis. Again, types of prosthesis में screw retained, cement retained. Nowadays, screw cement retained hybrid prosthesis and the removable prosthesis. So what is meant by screw retained prosthesis? Screw retained prosthesis means जब आप prosthesis बनाते हो डायरेक्ट इम्प्लांट के ऊपर आप स्क्रू करते हो उसको, right? But in my cement retained prosthesis में abutment होता है, क्राउन ब्रिज की तरफ आपका prosthesis आप उसके ऊपर ल्यूट कर रहे हो with the help of cement, different cements. That's called a cement retained prosthesis. Then what are the advantages of screw retained and cement retained prosthesis when they are indicated? What is the advantage of screw retained prosthesis? They have the known retention because screw के हिसाब से आप उसको fix कर रहे हो तो आपको पता है उसका retention better है. और जब तक आप screw unscrew नहीं करते तब तक वो निकलता नहीं है. Easily remove. In case of कुछ problem होता है फ्यूचर में, फ्रैक्चर्स होते हैं, पेशेंट को कुछ कंप्लेंट है, आपको निकालना है prosthesis whether it is single unit or the full mouth, तो आप इजीली उसको रीटाइटन करके अनटाइटन करके निकाल सकते हो. अगर कभी लूज होता है फ्यूचर में तो वापस से उसको टाइट कर सकते हो. नो रिस्क ऑफ लिविंग रेसिडुअल सीमेंट. लिविंग द रेसिडुअल सीमेंट इन इम्प्लांट इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक फॉर योर इम्प्लांट. तो स्क्रू रिटेन में वो चांस नहीं कि आप सीमेंट वहाँ पे फंस रहा है बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग सीमेंट फॉर द रिटेंशन. बट व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ द स्क्रू रिटेन प्रोस्थेसिस? व्हाइल फैब्रिकेटिंग इन लैब आल्सो फॉर द डॉक्टर्स आल्सो दे आर डिपेंडेंट अपॉन द इम्प्लांट एंगुलेशन एंड द ओरिएंटेशन. To give a screw retained prosthesis, we need a parallel implant to give a passive prosthesis. Okay, so there depends upon the implant angulation. Second, maybe anesthetic. Anesthetic में screw hole आता है. अगर interim screw retained prosthesis कर रहे हो, by chance आपका labial access hole आता है, that is most anesthetics. Few patients lower mandibular molars में भी screw hole या patchwork accept नहीं करते हैं. And passivity of it is a questionable. It is very difficult to get a passive prosthesis in a screw retained prosthesis. Passivity of the framework. There are a number of factors that affect the passivity of your framework. Again, in contrast, cement retained prosthesis, what are the advantages? They are independent of the implant angulation and the orientation. मैंने क्या बोला कि जैसा screw retained prosthesis आप कर रहे हो उसमें implant आपके parallel चाहिए. Cement retained में जरूरी नहीं implant parallel चाहिए. अगर implant का parallel है तो you can go for the angle abutments और उसका parallel कर सकते हो. Simplicity and passive fit. You can achieve always a passive fit with the cement retained prosthesis when it compared with the screw retained prosthesis. Idealize occlusal contact. क्योंकि occlusal access opening नहीं रहता, hole नहीं रहता, आपका idealize occlusal contact develop कर सकते हो, and they are giving the more aesthetic restorations. There are some disadvantages of the cement retained prosthesis. Unknown retention. Implant में क्या होता है? They are not in जब क्राउन पीस करते हैं अपन क्या करते हैं मोर रिटेन टू सीमेंट्स यूज़ करते हैं, जीआईसी यूज़ करते हैं, रेजिन सीमेंट्स यूज़ करते हैं. बट इम्प्लांट डेंटिस्ट्री मोर रिटेन टू सीमेंट्स आर नॉट इंडिकेटेड. यू हैव टू गो फॉर द लीस्ट रेटेड और टेम्पररी सीमेंट्स फॉर द फाइनल सीमेंटेशन ऑफ योर क्राउन. क्यों? क्योंकि फ्यूचर में कभी निकालने की जरूरत पड़े तो ईजिली आप निकाल सकते हो. दैट्स वाई देयर इज अननोन रिटेंशन विद द फिक्स्ड रेस्टोरेशंस एंड कैन बी डिफिकल्ट टू रिमूव. अगर आप जीआईसी यूज़ करते हो, कॉम्पोजिट रेजिन्स यूज़ कर सकते हो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिट्राइव द सीमेंट रिटेन प्रोस्थेसिस.
Again, there are two types of the procedure. One is the implant level और second is the abutment level. जब आपको डॉक्टर्स इंप्रेशन देता है वहाँ पे इम्प्लांट है लैब लॉक दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लांट लेवल प्रोस्थेसिस. इन दिस केस अपार्टमेंट लेवल में सीमेंटेड अगर अपार्टमेंट लगा है क्राउन ब्रिज के जैसे इंप्रेशन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अपार्टमेंट लेवल. एंड सेकंड व्हेन दे आर यूजिंग द मल्टीवेट अपार्टमेंट आल्सो कॉल्ड एज अपार्टमेंट लेवल प्रोस्थेसिस. अपार्टमेंट लेवल प्रोस्थेसिस इज ऑलवेज बेटर. व्हाई? अगर आप इम्प्लांट लेवल प्रोस्थेसिस देते हो, कुछ कार्बन स्क्रू फ्रैक्चर वगैरह होता है तो आपको इम्प्लांट पे प्रॉब्लम आ सकता है. बट व्हेन यू आर इन द अपार्टमेंट लेवल प्रोस्थेसिस, जब भी प्रॉब्लम आता है, स्क्रू फ्रैक्चर होता है, जस्ट रिमूव द प्रोस्थेसिस, रिमूव द अपार्टमेंट, रिप्लेस द अपार्टमेंट, आपके इम्प्लांट को कुछ नहीं होगा. ओके, सो अपार्टमेंट लेवल प्रोस्थेसिस इज ऑलवेज बेटर कंपेयर टू द इम्प्लांट लेवल प्रोस्थेसिस. Design of a prosthesis, how they are designed? They are designed in the two types. One is a monolithic means a single block production, and hybrid means different materials. Framework material is different, layered material is different. There are two kinds of prosthesis. What are the materials used in fixed prosthesis? There are different materials used in implant dentistry. They are called as the underlying framework materials and overlay materials. Framework material जिससे आपका बेस बनता है, whether it is a metallic or non-metallic one. एंड ओवरले मटेरियल्स में सिरेमिक, कंपोजिट, एक्रिलिक रेजिन जो उसके ऊपर आप लेयर्ड करते हो. ओके, तो व्हाट आर द फ्रेमवर्क मटेरियल? यू कैन गो फॉर द निकल क्रोम कास्टिंग्स, क्रोम कोबाल्ट मिलिंग, 3D प्रिंटिंग, टाइटेनियम, जर्कोनिया रेजिन, दैट इज अ बायो एचपीपी, एंड यू कैन लेयर्ड विद द सिरेमिक, कंपोजिट और एक्रिलिक रेजिन. These are the materials available in the market in CAD/CAM dentistry. You all are very well aware about these materials. But there is no universal material that can be applied for all cases. ऐसा नहीं कि टाइटेनियम आप हर जगह पे दे सकते हो, कास्टिंग प्रोसेस हर जगह पे दे सकते हो, बायो एचपीपी हर जगह पे दे सकते हो. Why? Because every material in prosthetic dentistry has its own space requirement. अगर आप सपोज बहुत बार क्या होता है, आपके पास केस आ जाता है फुल माउथ का, कहते हैं वी आर हैप्पी, डॉक्टर बोलता है हाइब्रिड डेंचर देना है उसको. पहले हाइब्रिड डेंचर ज़्यादा होते थे, जब अपने पास देखते हैं तो माउंट करने में वहाँ पे स्पेस ही नहीं है. बिकॉज हाइब्रिड प्रोस्थेसिस नीड एटलीस्ट 15 मिलीमीटर स्पेस इन वन आर्च. और आपको जब गिनते तो 8 या 9 मिलीमीटर की स्पेस रहती है, तो उसमें आप हाइब्रिड डेंचर नहीं दे सकते. बिकॉज फॉर हाइब्रिड डेंचर वी नीड 8 मिलीमीटर बार, 5 to 6 मिलीमीटर एक्रिलिक पोर्शन, वी नीड सफिशिएंट स्पेस फॉर दैट. सो एवरी मटेरियल हैज इट्स ओन स्पेस रिक्वायरमेंट्स इन implant dentistry. The minimum space required is 10 millimeter and maximum can be more than 20 millimeter. According to you can decide the prosthesis, type of the prosthesis and the materials used for the full mouth cases. When it comes to the crown and bracing cases or multiple bridges, how you can decide whether to go for the cement-retained prosthesis or screw-retained prosthesis? Just mount the model and measure the distance from your emergence of the gingiva and the opposing cusp. If the distance is more than 8 millimeter, always go for the cement-retained prosthesis. Why? For cement-retained prosthesis, we need at least 4 millimeter of the abutment height for the retention and 2 millimeter space for the ceramic. If it is more than 8 millimeter, go for the cement-retained prosthesis. But if it is less than 8 millimeter, always go for the screw-retained prosthesis. Is it clear? There are some numerical guidelines when you are dealing with the full mouth cases, which materials should be used, where it is applicable. How to measure the restorative space when you are dealing with the full mouth cases? Just mount the case by recording the tentative jar from the lower incisal edges of the lower arch to the crest of the upper edge. Just measure the distance. This distance gives us an idea about the which material is used or suitable for that case. When you are dealing with the chrome cobalt ceramic आप काम पर that is space required is 10 to 18 millimeter. Okay. When you are dealing with the titanium ceramic, only one design is possible with the titanium, that is a hollow bridge, and space required is 12 to 18 millimeter. Zirconia plus ceramic, 3 designs are possible. In zirconia we can go monolithic crown, layer ceramic directly, or framework luted with the zirconia crown. That is also required to minimum 12 to 18 millimeters of the space. इससे आपको स्पेस कम मिलती है तो वही मटेरियल्स में प्रॉब्लम आएगा, फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा रहेंगे. बायो एचपीपी कंपोजिट रेजिन, we can deal with the 2 designs, the layered resin directly over the bio HPP and make the luted crown by designing the hollow bridges. That is also required a space of 12 to 18 millimeter. Bio HPP ceramic, only one design is possible, hollow bridge, and lute the ceramic crowns over it. That is also required 12 to 18 millimeter space.
क्रोम कोबाल्ट कास्टिंग जब हाइब्रिड डेंचर देते हो दैट विल रिक्वायर मोर देन 18 मिलीमीटर स्पेस। क्रोम कोबाल्ट कास्टिंग विद सिरेमिक जो अपन रूटीनली करते हैं दैट विल आल्सो नीड अ गुड स्पेस। जैसे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ द स्पेस रिक्वायर्ड। जब भी आपके पास केस आता है डॉक्टर ने बोला कि ये करना है, ये मटेरियल में करना है, तो सही तो उतना स्पेस आपको मिल रहा है। नहीं तो क्या होता है, आप करके दे देते, पैसा मिल रहा है, बाद में प्रॉब्लम आता है, वी हैव टू रिपीट ऑल द थिंग्स, आपको उसका कुछ पैसा नहीं मिलेगा अलग से। डॉक्टर्स क्या करते हैं, बहुत बार पेशेंट आता है, वॉकिंग पेशेंट आता है क्लिनिक पे, फुल माउथ एक्सप्लेन कर देते हैं। पेशेंट बोला मैं 4 लाख के रेडियो इमीडिएटली इम्प्लांट प्लेस कर देते हैं। पेशेंट बोलते हैं अपन बायो हाइब्रिड करेंगे, सिरेमिक करेंगे, डिपेंड कितना पैसा दे रहा है। वो कुछ रिकॉर्ड लेते नहीं है, माउंटिंग नहीं करते, प्री एनालिसिस नहीं होता है। जब 3 महीने के बाद केस फाइनल प्रोसेस के लाते हैं, इम्प्रेशन लेके अपने पास भेज देते हैं, बोलते हैं ये बना दे उसके ऊपर। जब अपने पास आते जा रहे हैं तो स्पेस नहीं तो मैं कहाँ से बनाऊँगा। तो डॉक्टर्स बोलते हैं यार मैंने तो ऑलरेडी पेशेंट को बोल दिया है। या फिर अपन क्या करते हैं, फोर्स में आके बना के दे देते, फिर प्रॉब्लम आ गए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा लैब वाले के ऊपर आ जाता है, तूने बनाया तो वापस रिपीट करके दे। तो अपने को पूरा नॉलेज होना चाहिए कि डॉक्टर जो बोल रहा है, जो मटेरियल में डिमांड करे उसके लिए वो अवेलेबल है क्या, वो केस इंडिकेटेड है क्या। तो यू हैव टू डिस्कस द केसेस विद द डॉक्टर्स बिफोर प्रोसीडिंग। क्लियर यहाँ तक स्पेस रिक्वायरमेंट्स। ओके, नाउ कमिंग टू प्रोस्थेटिक कंपोनेंट्स। टू मच इन्वेंट्री इन इम्प्लांट डेंटिस्ट्री। इतने सारे प्रोस्थेटिक कंपोनेंट्स है, अलग अलग डिज़ाइन है, मिनी है, रेगुलर है, नैरो प्लेटफॉर्म, वाइड प्लेटफॉर्म, डिफरेंट कॉलर हाइट्स, एंगल है, सीमेंटेबल है, स्क्रूटेन प्रोस्थेसिस है। ओके, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स इन द सिंपलर वे। तो व्हाट आर द प्रोस्थेटिक कंपोनेंट्स? फर्स्ट स्टार्ट विद द इम्प्रेशन पोस्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इम्प्रेशन। पहले 2 ही टाइप के थे, बट द इंट्रोडक्शन ऑफ द डिजिटल डेंटिस्ट्री वन मोर एडेड। One is a closed tray impression post, open tray impression post. Third is a scan body that is used in digital dentistry. Second component is a lab analog or implant analog or digital lab analog. Third is a abutment that is used for the restoration. And last is a type edge that deals with the digital dentistry. These are the components. Again, torque ratchet and the hex driver. These are all components required to deal with the implant dentistry. What is by closed tray impression post? Closed tray impression post क्या होता है? बहुत बार क्या होता है, ये लैब वालों को क्यों पता होना चाहिए? These are the clinical steps. बराबर है ना, आप यही सोच रहे होंगे, लेकिन आप लोग पता होना चाहिए कि डॉक्टर का इम्प्रेशन कौन से टाइप में आ रहा है। फिर इज अ क्लोज ट्रे और ओपन ट्रे। बहुत बार डॉक्टर लोग क्या होता है, ओपन ट्रे का क्लोज ट्रे में ले लेते हैं, क्लोज ट्रे का ओपन ट्रे में ले लेते हैं, फिर प्रोसेस में प्रॉब्लम आता है। तो क्लोज ट्रे इम्प्रेशन में क्या होता है, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द सिंगल यूनिट रिस्टोरेशन ओनली। सिंगल यूनिट इम्प्लांट की इम्प्रेशन ले लें, क्लोज ट्रे इम्प्रेशन इज ओके। इसमें आपकी इम्प्रेशन पोस्ट शॉर्ट होती है, यहाँ पे ओरिएंटेशन मार्किंग्स होते हैं और कुछ लॉकिंग ग्रूव्स वगैरह या फिर एक्सटेंशंस नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड एज अ क्लोज ट्रे इम्प्रेशन पोस्ट। और जब भी इम्प्रेशन लेते हैं तो इम्प्रेशन और इम्प्रेशन पोस्ट अलग अलग आ जाती है अपने पास, इम्प्रेशन के एक साथ नहीं होता है व्हेन यू आर डीलिंग विद द क्लोज ट्रे इम्प्रेशन। When you are dealing with the pickup type impression or open tray impression, this impression post looks like this. The longer screw, extension for the locking. Okay, different company has the different designs. इसका जब ओपन ट्रे के इम्प्रेशन आते हैं तो इम्प्रेशन पोस्ट इम्प्रेशन में एम्बेडेड आती है अपने पास। जब ऐसा इम्प्रेशन आते हैं तो डेट इज कॉल्ड एज ओपन ट्रे इम्प्रेशन। ओके, और पिकअप इम्प्रेशन दे आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट। नैरो डायमीटर के नैरो डायमीटर का अलग रहेगा, वाइड प्लेटफॉर्म है तो उसका अलग रहेगा, मल्टीवेट है तो मल्टीवेट की इम्प्रेशन पोस्ट अलग रहेगी। ओके, नाउ कम्स द डिजिटल इम्प्रेशन, दे आर कॉल्ड एज स्कैन बॉडीज। स्कैन डिफरेंट कंपनी के स्कैन बॉडी की डिज़ाइन अलग अलग, ज्योमेट्रीज अलग अलग होती है। तो जब इंट्रावल के इम्प्रेशन अपने पास भेजते हैं तो डॉक्टर्स को बोलना कि कौन सी स्कैन बॉडी यूज़ की उसका डिटेल्स हमको भेजो। बहुत बार कहता है 7 मिलीमीटर की स्कैन बॉडी रहती है, 10 मिलीमीटर स्कैन बॉडी रहती है, और डॉक्टर ने अगर गलत 7 की यूज़ की और 10 मिलीमीटर आपने को लिख के भेजा है और अपन सॉफ्टवेयर में वही सेलेक्ट करते तो आपका प्रोसेस बैठेगा नहीं। ओके, फॉर सिंगल यूनिट क्लोज ट्रे इम्प्रेशन इज प्रेफरेबल ऑलवेज। इफ यू आर डीलिंग विद मोर देन, अगर आपके डॉक्टर का मल्टीपल यूनिट का इम्प्रेशन आता है, 1 से 2 इम्प्लांट या ज़्यादा इम्प्लांट है, ऑलवेज आस्क देम टू रिकॉर्ड अ ओपन ट्रे इम्प्रेशन। ओके,
Now lab analog. What is by lab analog? This is a duplication of your implants. Implant की जो ज्योमेट्री यहाँ पे डुप्लीकेट होती है, जो अपन मॉडल के ऊपर फिक्स करके उसके ऊपर काम करते हैं या प्रोस्थेसिस बनाते हैं. Different lab analogs are available. These are for the conventional implantology. This is for the multi-unit. These are the digital lab analog, and they are placed in the models to fabricate a prosthesis. They are called the lab analogs. Second, third component is abutment. Abutment is a component that is intermediate between implant and the restoration. Okay? Abutment होता है implant के ऊपर एक abutment बैठता है, उसके ऊपर आपका crown बैठता है. That is called as the abutment. That helps for the retention, support, stability, and optimal position for the definitive restorations. Abutments can be fabricated by the manufacturer, जो pre-made abutment आते हैं, और customize भी आप कर सकते हो, depends upon your case, or they can be CAD/CAM produced. Okay. So what are the materials used for the abutment fabrication? Mostly the abutments are available in the titanium, zirconia, precious alloy, that is called the SVL abutment, resins, PIG, they are the temporary abutment. You can fabricate abutment in the bio-HPP also. These are the different materials available. How the abutment looks? See, they are classified as a prefabricated. Prefabricated company made. जो company खुद बनाती है implant के साथ आपको देती है, that is called the prefabricated abutment. Second is a custom made or pre-milled. Suppose आपका implant हर एक कंपनी के पास abutments है with the particular diameters और dimensions. Angle abutment 25 तक अवेलेबल है. अगर आपका केस है, एंटीरियर का केस है, उसमें 35 और 40 डिग्री एंगुलेशन चेंज करना है आपने कर, तो यू कैन गो फॉर द कस्टमाइजेशन ऑफ द abutment. That can be done manually by castings or you can pre-mill with the CAD/CAM technology. Last is a digital abutment. They are called as a tie bases, that is used in the digital dentistry. Again, angles. One is a straight abutment, that is used when your implants are parallel or absolutely straight. Another is angle abutment. जब आपका implant का angulation अलग है, उसको आप parallel करना चाहते हो adjacent tooth के साथ, adjacent abutment के साथ, तो go for the angle abutment. They are available hex or non-hex. But when you are using the transfer abutment or prefabricated abutment, always go for the hex abutments. Okay. And they are available with the different collar heights also. Collar height means this one, ginjal height. Okay, they are available 1 millimeter, 2 millimeter, 3 millimeter. How to select the abutment, we will discuss later. Then customized abutments. कब customize करना चाहिए abutment? Customization of the color. When you are dealing with the anterior cases, zirconia अगर देना है आपको, EMS देना है, तो आपको customize करना पड़ेगा for color. Customization for the angle correction, already discussed. कस्टमाइजेशन फॉर द लेंथ. बहुत बार क्या होता है, इम्प्लांट जब प्लेस करते हैं, इम्प्लांट काफ़ी डीप होता है सॉफ्ट टिश्यू में, जैसे ट्रॉमा के केसेस है, बोन लॉस के केसेस है, इम्प्लांट 7 मिलीमीटर तक डीप होता है. तो आपने रेडीमेड abutment जो अवेलेबल है 1 to 4 मिलीमीटर कॉलर हाइट तक, और इतना सब जिंजर अपन प्रोस्थेसिस नहीं देते, सीमेंट रिटेंशन प्रॉब्लम्स. इन दैट केसेस यू कैन कस्टमाइज द abutment एंड कस्टमाइजेशन फॉर द मार्जिन प्लेसमेंट. यहाँ तक क्लियर abutments टाइप्स ऑफ. कुछ क्वेश्चन है तो आप बीच बीच में पूछ सकते हो. There are a lot of inventory to remember. Okay. Then multi-unit abutment. What is the multi-unit abutment? When it is used? When you are dealing with the full mouth cases. बहुत बार क्या होता है, अपन फुल माउथ के केस अपने पास आते हैं, अपर लोअर के डॉक्टर इम्प्लांट लेवल इंप्रेशन लेके भेज देते हैं और बोलते हैं कि स्क्रूटेन प्रोस्थेसिस दे दें. होता है ना, बहुत बार आती है केसेस. लेकिन स्क्रूटेन कब पॉसिबल है? एक तो आपके इम्प्लांट एग्जैक्ट एक दूसरे को पैरेलल है, तो आप स्क्रूटेन प्रोस्थेसिस दे सकते हो फुल आर्च. बट इफ दे आर नॉट पैरेलल, और उसके ऊपर भी बहुत लैब वाले क्या करते हैं, करके दे देते हैं, एक इम्प्लांट ऐसा एक इम्प्लांट ऐसा, लेकिन उनका प्रोस्थेसिस तो बैठ जाता है स्क्रूटेन. अपन क्या करते हैं, वी आर वेरी स्मार्ट, मैनिपुलेशन जुगाड़ करते ही रहते, क्योंकि डॉक्टर को कौन बोलेगा भाई उसमें मल्टीयूनिट डाल दे. अगर डॉक्टर को अपन बोलते कि उसमें मल्टीयूनिट लगेगा, स्क्रूटेन नॉट पॉसिबल, मल्टीयूनिट कॉस्ट 5000 रुपीज़, डॉक्टर मना करेगा या फिर लैब वाले दूसरा लैब वाले को वर्क देगा. अपन क्या करते हैं, फिर घिस के फिटिंग करवा के दे देते हैं उसमें. बट दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द इम्प्लांट डेंटिस्ट्री. इम्प्लांट में आपका जो भी कनेक्शन हो, वर्जिन कनेक्शन बैठना चाहिए. इट शुड बी एयर टाइट एंड वाटर टाइट. इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू मैनिपुलेट द इंटरनल कनेक्शन. इंटरनल कनेक्शन थोड़ा भी मैनिपुलेट करते हो, वहाँ पे माइक्रो मोशन होगा. इमीडिएट कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉन्ग टर्म में इश्यूज आएंगे. माइक्रो मोशन होगा, पूरा लोड इम्प्लांट स्क्रू के ऊपर जाएगा, आपका इम्प्लांट फ्रैक्चर हो जाएगा या स्क्रू फ्रैक्चर हो जाएगा, प्रोस्थेटिक कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे. जब आप डॉक्टर के साथ डिस्कस करोगे, सर यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम आ सकती है, आल्सो अप्रिशिएट कि उनके केस उनके लिए इम्पोर्टेंट है.
बहुत बार कहते लैब वालों को आपको पता नहीं था, अपन करके देते, डॉक्टर भी थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं, फ्यूचर में प्रॉब्लम आते हैं. तो ऑलवेज डिस्कस विद द डॉक्टर्स व्हेन यू आर डीलिंग विद द स्क्रू टिन प्रोस्थेसिस केसेस. Okay, what the use of this multi-unit abutments? There are few uses. First, they help to change the implant angulation. They are available with the different angulations, 70, 30 degree. Nowadays, 50, 55, 60, 70 degrees are available with the development of the zygomatic implant or pterygoid implants. Okay, first they convert the internal connection to the external connection. That is the second use. Okay, see here, this is the implant angulation. The handpiece shows the implant angulation, and after placing the multi-unit abutment, this angulation is changed. Okay, अभी बहुत बार आप क्या होता है, डॉक्टरों के पास जो न्यू प्रैक्टिशनर है, फुल माउथ केसेस कर रहे हैं, इम्प्लांट एंगुलेशन से मल्टी-यूनिट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है. तो वो लोग क्या करते हैं, मेरे पास इंप्रेशन भेज देते हैं, भाई तो इसके ऊपर मल्टी-यूनिट अबटमेंट लगा के दे दे, मैं वैसे ही ट्रांसफ़र इंट्राओरली करूँगा. जब आपके पास ऐसा केस आता है कि डॉक्टर बोलते हैं कि मल्टी-यूनिट मुझे पता नहीं, पैरेलल आते हैं नहीं आते हैं, उसका एंगुलेशन कहाँ पे आना चाहिए, तो आपने को पता होना चाहिए एज ए लैब पर्सन. जब आपके पास आएगा मॉडल, पहले रेगुलर मॉडल पोर कर लो, फिर उसके ऊपर मल्टी-यूनिट अबटमेंट लगा दो. मल्टी-यूनिट अबटमेंट कैसे सेलेक्ट करना है? फर्स्ट, जिंजर कॉलर हाइट. ओके, डिफरेंट जिंजर कॉलर हाइट्स आर अवेलेबल. दिस इज द जिंजर कॉलर हाइट. आपके पास मॉडल है, सॉफ्ट टिश्यू प्रोफाइल आपने क्रिएट किया है, उसमें देख लें कि इम्प्लांट कितना डीप है. Always place this multi-unit abutment 1 millimeter deep to avoid the metal collar, display of the metal collar. Second, proper angulation. When you are placing multi-unit abutment in the anterior region, try to get the openings, that is two axis openings on the lingual side. When you are dealing with the posterior cases, always try to get this opening on the opposite surfaces. वो हिसाब से एक दूसरे को पैरेलल लगा के डॉक्टर को मॉडल भेज दो, वो ऐसे को ऐसा मुंह में ट्रांसफ़र करेगा और आपको नया इंप्रेशन दे देगा. क्लियर हाउ टू यूज़ द मल्टी-यूनिट अबटमेंट. तो इसका नॉलेज अपने को आना चाहिए कि कौन से डिग्री में अवेलेबल है, कौन सी कंपनी का इम्प्लांट है. अभी ऑस्टिन के साथ आप डील करते हो, ऑस्टिन में 17 और 30 डिग्री अवेलेबल है. बायल एंड नॉरिस उनके साथ डील करते हैं, उनके पास मल्टीपल एंगुलेशन अवेलेबल है. तो आपके इम्प्लांट के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रोस्थेटिक कंपाउंड्स अवेलेबल है. तो उसके लिए क्या करना है, आपको हर कंपनी का कैटलॉग 8 दिन में एक बार देखना है. अगर आप स्टॉमर का कैटलॉग लेके बैठे उसको समझने के लिए 1 महीना लगेगा, इतने प्रोस्थेटिक कंपोनेंट्स हैं. तो आपके लैब में हर एक कंपनी का इम्प्लांट कैटलॉग होना चाहिए. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दिस कंपोनेंट्स. जब भी केस आता है कैटलॉग निकालो, देखो उसमें क्या क्या. डॉक्टर क्या होता है, कौन सा अबटमेंट भेजो, एंगल भेजो या 4 मिलीमीटर हायर कॉलर हाइट, 2 मिलीमीटर कॉलर हाइट भेजो. तो आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी कौन से अवेलेबल है. तो ऑलवेज कीप अ कैटलॉग इन योर लैबोरेटरी. अगेन कास्टेबल अबटमेंट्स. नाउडेज दे आर गेटिंग आउटडेटेड. प्रीवियसली कैड-कैम नहीं था, डिजिटल डेंटिस्ट नहीं थे, तो कैड ये अबटमेंट काफ़ी यूज़ होते थे. कास्टेबल अबटमेंट क्या होता है, पूरा प्लास्टिक पार्ट होता है, या फिर ऊपर का प्लास्टिक पार्ट, नीचे का नॉन प्रीशियस कास्टिंग का अलग रहता है. ओके, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस कास्टिंग अबटमेंट वेयर दे आर यूज. जब भी आप स्क्रू टिन प्रोस्थेसिस करना चाहते हो तो आपको कास्टेबल अबटमेंट यूज़ करना है स्क्रू टिन प्रोस्थेसिस के लिए. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस कास्टेबल अबटमेंट्स, ये जो कनेक्शन है अपन कास्टिंग करने के बाद क्या होता है, मैंने तो कास्टिंग डिफेक्ट्स, कास्टिंग के क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और मैंने क्या बोला कि जब इम्प्लांट की ज्योमेट्री कनेक्शन से इंटरनल कनेक्शन दे शुड बी परफेक्ट, एयर टाइट, वाटर टाइट, वहाँ पे कुछ माइक्रो मोशन भी नहीं होना चाहिए. जब आप कास्टिंग करते हो तो इसका कास्टिंग डिफेक्ट आ जाते हैं, कहीं परफेक्ट आ जाते हैं, कास्टिंग श्रिंकेज आ जाता है. सेकंड चीज़, सब परफेक्ट कास्टिंग आ गई, जब आप फाइनल प्रोसेस होने के बाद डॉक्टर को भेजते हैं, उसको पॉलिश करते हैं ना, इंटरनल कनेक्शन को पॉलिश करते हैं, वैसा भेजते हैं अपन. वी हैव टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर्स. इसको जब भी आप पॉलिश करते हो तो इसका जो हेक्सागोनल कनेक्शन वो डैमेज हो जाता है, राउंडेड हो जाता है. दैट विल गो प्ले इन योर प्रोस्थेसिस. सो दैट इज़ नॉट एडवाइसेबल. उसको इम्प्रूव करने के लिए कंपनी ने क्या क्या है, यहाँ का प्लास्टिक पार्ट रखा है, ये जो पार्ट है नॉन प्रीशियस अलॉयज में रखा है. लेकिन इसको भी जब कास्टिंग करते हो आप, बाद में पॉलिश करते हो, इसको भी मैनिपुलेट करना पड़ता है. अगेन इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम इन फ्यूचर. बट इज बेस्ट, there are link abutments of tie bases. They are made of the titanium. They give the virgin connection. इसमें क्या होता है, आप प्रोस्थेसिस जब बनाते हो इसको टच नहीं करते, ये वर्जिन ही रहेगा. जो प्रोस्थेसिस बनेगा इसके ऊपर आप ल्यूट करते हो, फिर ये पूरी असेंबली इम्प्लांट में चली जाती है. एंड दैट इज अ कंपनी मेड प्लेटफॉर्म. ओके, दैट इज द एक्यूरेट कनेक्शन. इट रिड्यूस द फ्यूचर प्रॉब्लम्स. So always go for the tie bases when you are dealing with the screw tin prosthesis. Torque ratchets.
दैट इज अ क्लिनिकल आइटम, लेकिन अपने को पता होना चाहिए लैब में भी कि टॉर्क करता है, हर स्क्रू के लिए कितना टॉर्क देना चाहिए. ओके, ऑलवेज आस्क योर डॉक्टर टू प्रोवाइड 2 स्क्रूज व्हेन यू आर डीलिंग विद द स्क्रू टेन प्रोस्थेसिस. जो लैब के स्क्रू अलग रख दो. लैब में क्या होता है, अपना मल्टीपल टाइम स्क्रू टाइट करते हैं निकाल देते हैं, टाइट करते हैं निकाल देते हैं, उसमें स्क्रू इलांगेशन कॉन्ट्रैक्शंस होते रहता है. और स्क्रू बाद में जब डॉक्टर्स टाइट करते हैं उसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा है. तो लैब में आप स्क्रू अलग रखो प्रोस्थेसिस के. जब फाइनल लोग डॉक्टर को भेज दो, वर्जिन स्क्रू अलग से भेज दो, या फिर उनको मतलब एक स्क्रू का सेट आपके पास से रख दो, हमारे लैब स्क्रू हम अलग चीज़ यूज़ करेंगे. दैट विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ फ्यूचर फ्रैक्चर. ओके, और लैब में क्या होता है, हर कंपनी का हेक्स ड्राइवर अलग है, सबको पता है. हेक्स ड्राइवर की डिज़ाइन अलग, किसी का हेक्सागोनल है, किसी का स्टार शेप है, अलग अलग शेप अलग अलग साइज़ के हेक्स ड्राइवर्स अवेलेबल मार्केट में. अपने पास क्या होता है, लैब में अपन 4000 के हेक्स ड्राइवर है, कितने लूम है, हर कंपनी का वर्क कर रहा है. एक ही हेक्स ड्राइवर रहता है, अपन सब तरफ यूज़ करते हैं. उसमें क्या होता है, कुछ दिनों बाद स्क्रू हेड जो है, यहाँ पे हेक्स ड्राइवर लॉक होता है, वो ख़राब हो जाता है. ऑलवेज ट्राई टू यूज़ प्रॉपर कंपनी हेक्स ड्राइवर. जो कंपनी ऑस्टिन की केस कर रहे हो ऑस्टिन का हेक्स ड्राइवर यूज़ करो, बायलन की केस कर रहे हो बायलन का हेक्स ड्राइवर यूज़ करो, स्टॉमन की केस कर रहे हो स्टॉमन का हेक्स ड्राइवर यूज़ करो. तो आप ये डॉक्टर को समझ में नहीं आता अपन ने क्या क्या, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है, वहाँ पे रैचेट जब टाइट करते हैं तो घूमने लगता है, क्यों अपने इंटरनल थ्रेड्स डैमेज किए हुए रहते हैं स्क्रू हेड के. ओके, ऑलवेज ट्राई टू यूज द अप्रोप्रिएट कंपनी हेक्स ड्राइवर्स इन द लैबोरेटरी. लैब देयर आर डिफरेंट साइजेस ऑफ हेक्स ड्राइवर्स आर अवेलेबल. आई प्रेफर इन लैबोरेटरी द लॉन्ग हेक्स ड्राइवर. जब हाइब्रिड की केस करते हो, लॉन्ग स्क्रू चैनल्स होता है, तो ऑलवेज प्रेफर द लॉन्ग स्क्रू ड्राइवर्स और हेक्स ड्राइवर्स. Clear about the components? कुछ डाउट components में, when they are used, where they are used, what are the types available? Okay. Now coming to the impression. Impression लैब की जिम्मेदारी है क्या? It's a clinical term. और लैब वालों के impression के बारे में क्यों पता होना चाहिए? Why? Impression क्या होता है? अभी implant है. Prosthesis तो पेशेंट के मुंह में नहीं बना सकते. We have to create the prosthesis over the models. जो इम्प्लांट की ज्योमेट्री है इन रिलेशन विद द बोन, इन रिलेशन विद द कनेक्शन, हेक्सागोनल कनेक्शन, इन रिलेशन विद द एडिशनल टूथ, ये ऐसे कैसे अपने को मॉडल के ऊपर डुप्लीकेट करना है, तो अपन उसके ऊपर प्रोस्थेसिस जो फैब्रिक है तो प्रॉपरली बैठेगा. दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इम्प्रेशन. क्लियर? अभी यहाँ पे जब आपके पास इम्प्रेशन आते हैं तो मेजोरिटी इम्प्रेशन टाइम में आते हैं. फर्स्ट, प्लास्टिक ट्रेस. 90% इम्प्रेशन भी रिसीव इन द प्लास्टिक ट्रेस. बराबर, बस आपने बेसिक्स में जब जाएंगे यूजी के या फिर टेक्निकल कोर्स में, तो ट्रे इम्प्रेशन के लिए ट्रे की रिक्वायरमेंट क्या? फर्स्ट, ट्रे शुड बी रिजिड वन. तो प्लास्टिक ट्रे रिजिड है? नहीं है. और इम्प्लांट के लिए क्या करते हैं अपन, यहाँ पे होल बनाएंगे, यहाँ पे होल बनाएंगे, यहाँ पे होल बनाएंगे, यहाँ पे होल बनाएंगे, मल्टीपल होल्स क्रिएट, तो उसमें रिजिडिटी होगी? नहीं होगी ना. ठीक है, जब रिजिडिटी नहीं है तो जो इम्प्रेशन अपन ले रहे हो, अगर नॉन स्प्लिटेड तो डिस्टॉर्ट होने के चांसेस बहुत है. अब पट्टी जब यूज़ करते हैं इम्प्लांट के लिए, वही यूज़ हार्ड पट्टी, क्योंकि इम्प्लांट इम्प्रेशन रिजिड होने चाहिए. हार्ड पट्टी जब आप प्लास्टिक ट्रे में यूज़ करते हो, ट्रे ऑलरेडी एक्सपांड हो जाता है जब इम्प्रेशन लेते हैं, और बाद में डॉक्टर बोलते हैं मैंने इतना अच्छा इम्प्रेशन लिया था, फिर प्रोसेस आपका बैठ नहीं रहा है पैसिवली. द प्रॉब्लम स्टार्ट विद द ट्रे सिलेक्शन. आस्क योर डॉक्टर टू गो फॉर द कस्टम ट्रेस और द मेटल ट्रेस टू रिकॉर्ड द whether it is open tray impression or closed tray impression. Okay. What are the impression technique? One is a closed tray, second is a open tray, and third is a digital impressions. In open tray impression should be non-splinted. अगर एक यूनिट है, दो यूनिट है, non-splinted acceptable. When you are dealing with the multiple implant full mouth cases, always prefer the splinted impression. That reduces the chances of errors. Okay. द क्लोज ट्रे इम्प्रेशन. जब डॉक्टर से आपके पास इम्प्रेशन आता है क्लोज ट्रे का, इट कम्स लाइक दिस. इम्प्रेशन पोस्ट अलग आएगी, इम्प्रेशन अलग रहेगा, ट्रे में परफोरेशंस नहीं रहेंगे, स्टील के ट्रे यूज़ किए रहेंगे. तो समझ लेना ये दैट इज अ क्लोज ट्रे इम्प्रेशन. ओके, क्लियर? क्लोज ट्रे इम्प्रेशन. हाउ दैट कम्स टू अस. सेकंड, ओपन ट्रे इम्प्रेशन. ओपन ट्रे जब इम्प्रेशन आता है अपने तो समझ लेना कि उसमें इम्प्रेशन पोस्ट जो है इम्प्रेशन में फिक्स हुए वाले हैं, वो सेपरेट नहीं आते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ ओपन ट्रे इम्प्रेशन. सेकंड इज द थर्ड इज द डिजिटल इम्प्रेशन. स्कैन मेल आता है, फाइल अपन डाउनलोड करते हैं स्टिल फाइल और फैब्रिकेट द प्रोसेसेस. एंड अगेन
What are the types of impression? One is implant level impression. तो ये सब टाइप के इम्प्रेशन हर केस के हिसाब से डॉक्टर्स अलग अलग इम्प्रेशन अपने पास भेजेगा. इम्प्लांट लेवल इम्प्रेशन मीन इम्प्लांट के ऊपर डायरेक्टली इम्प्रेशन हो लगे, वेदर इट इज़ अ क्लोज ट्री इम्प्रेशन पोस्ट और वेदर इट इज़ अ ओपन ट्री इम्प्रेशन पोस्ट. और जो इम्प्रेशन आएगा डैट इज कॉल्ड द इम्प्लांट लेवल इम्प्रेशन. ओके, जब आपको ये सब नॉलेज रहेगा और डॉक्टर के साथ आप इम्प्लांट केस डिस्कस करेंगे तो डॉक्टर्स गेट ऑलवेज इम्प्रेस विथ यू. उनको पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा आपके ऊपर कि यू हैव सफिशिएंट नॉलेज विद द इम्प्लांटोलॉजी और आपका प्रोसीजर जो भी अच्छे से ही बनेगा. ओके, अबटमेंट लेवल इम्प्रेशन. अबटमेंट लेवल जस्ट लाइक अ क्राउन एंड ब्रिज. अपन अबटमेंट फिक्स कर देते हैं, उसको इंटरवल में मैनिपुलेट करते हैं, क्राउन कटिंग के जैसा क्लियरेंस वगैरह करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, इंप्रेशन लेते हैं, वो डायरेक्टली आ जाएगा. व्हाट इज द प्रॉब्लम विद अबटमेंट लेवल इम्प्रेशन लैब के लिए? क्लिनिकली इट इज़ ईजी फॉर डॉक्टर्स, लेकिन लैब में जब अबटमेंट लेवल इम्प्रेशन आता है, बहुत बार सिंगल पीस अबटमेंट्स रहते हैं, इम्प्लांट्स रहते हैं, या ऐसे अबटमेंट लेवल इम्प्रेशन डॉक्टर भेजते हैं, तो अपने को पोर करना पड़ता है स्टोन में. स्टोन में पोर जब मॉडल निकालते मॉडल टूट जाता है या फिर अपना अबटमेंट टूट जाता है, वापस आप फेविक्विक से स्टिक करते हैं, उसको प्रॉपरली स्टिक नहीं होता है. ठीक है, स्टोन यूज़ नहीं किया, अपन पैटर्न रेजिंग में एक्रिलिक में मॉडल पोर करते हैं ताकि वो टूटे नहीं. लेकिन व्हाट हैपेंस विद द एक्रिलिक और द पैटर्न रेजिंग, दे ऑलवेज गेट श्रिंकेज होता है. तो जो यहाँ पे ओरिजिनल ज्योमेट्री डॉक्टर्स ने क्रिएट की वो आपको मॉडल के ऊपर नहीं आती है, या फिर मार्जिन प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं होती है. ओके, तो आपके फिटिंग में इश्यू आएंगे ही. आज डॉक्टर ऑलवेज रिकॉर्ड द इम्प्रेशंस, दैट इज इम्प्लांट लेवल. अबटमेंट लेवल लेना है तो मल्टीमीट अबटमेंट के ऊपर, नॉट दिस अबटमेंट जब मुंह में फिक्स किया है और उसके ऊपर इम्प्रेशन ले रहे हैं. ठीक है, दिस आर द अबटमेंट लेवल इम्प्रेशंस. द गुड इम्प्रेशन लुक्स लाइक दिस. जब क्लोज टू इम्प्रेशन है तो आपको पूरा मार्किंग दिखनी चाहिए. अगर मार्किंग नहीं दिख रहे तो रिजेक्ट करो, डॉक्टर बोलो भाई वापस नया इम्प्रेशन लेके दे दे. जब ओपन ट्री इम्प्रेशन आता है तो कहीं पे भी ड्रैग नहीं चाहिए, आपका इम्प्रेशन प्रॉपरली रिकॉर्डेड चाहिए, कहीं मोमेंट्स वगैरह नहीं चाहिए इम्प्रेशन पोस्ट में, लाइक दिस. ओके, हाउ टू रीड द इम्प्रेशन? सी दीज आर द इम्प्रेशन, वेदर दे आर एक्सेप्टेबल, दीज इम्प्रेशन आर एक्सेप्टेबल. बहुत अगर अपन कर लेते हैं यार, डॉक्टर नाराज हो जाएगा, उसको मैं बोलूँ कैसा इम्प्लांट और पहली बार मेरे पास आया. ठीक है, इफ़ यू हैव अ गट्स टू से नो यू सक्सीड. आपके पास गट्स होने चाहिए ना बोलने के लिए. आप अगर हर चीज़ में हाँ बोलोगे तो पूरा ब्लेम आपके ऊपर आएगा. यहाँ पे डॉक्टर ने ऐसा इंप्रेशन दिया है तो कौन से भी इम्प्लांटोलॉजिस्ट या प्रोस्थोडोंटिस्ट हो या लैब टेक्नीशियन हो गुड क्वालिटी वर्क डिलीवर नहीं कर सकता, फिटिंग नहीं आएगी. ओके, सो यहाँ पे इंप्रेशन लिफ्ट हुआ है, यहाँ पे टीयर हुआ है, यहाँ पे ट्रैक्स है, काफ़ी जगह पे मोमेंट्स हो सकते हैं इंप्रेशन पोस्ट में. सी दिस इम्प्रेशंस, इम्प्लांट का इम्प्रेशन तो अच्छा, लेकिन यहाँ पे ऑक्लूजन रिकॉर्ड नहीं हुआ है, यहाँ पे पूरा मटेरियल अडॉप्ट नहीं हुआ है. आप अपलोड कैसा करोगे? हाउ कैन गिव अ गुड दैट इज गुड क्वालिटी ऑक्लूजन टू द डॉक्टर्स? सी दिस वीडियो, सी द मोमेंट विद द इम्प्रेशन पोस्ट. इसके ऊपर कोई भी काम करे, बेस्ट टेक्नीशियन काम करे, मुंह में बैठेगा नहीं. ट्राई टू रिजेक्ट दिस इम्प्रेशंस. इम्प्रेशन पोस्ट फिक्स मीन्स फिक्स चाहिए, तो वहाँ पे ना कुछ मोमेंट चाहिए ना कुछ ड्रैग चाहिए, नथिंग. ओके, वैसा कुछ लगता है डॉक्टर बोला भाई नया इम्प्रेशन दे दे, अदर मैं करके दूंगा, डेट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिपीट करना पड़ा, विल चार्ज यू. ओके, तो रीडिंग इम्प्रेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इम्पोर्टेंट केवल डॉक्टर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, टेक्नीशियन के लिए भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम सब इम्प्रेशन से स्टार्ट होते हैं. इम्प्लांट बहुत ब्यूटीफुली प्लेस हुए रहते हैं, बस प्रॉब्लम स्टार्ट विद द इम्प्रेशन. और ये कब पता चलता है? 15-20 दिन के बाद, जब आप मेटल ट्रायल देते हो. उसके पहले किसी को पता नहीं चलता है कि क्या हुआ था. जब मेटल ट्रायल आपकी बैठती है तब तक 15 दिन निकले चुके, पेशेंट के 2-3 विजिट्स भी होते हैं, और उसके बाद आप जब पेशेंट को बोलते हैं कि नहीं आप रिपीट करना पड़ेगा, इट इज अ गुड? नो. ओके, नाउ कमिंग टू द डिजिटल इम्प्रेशन. व्हाट इज द प्रोटोकॉल फॉर डिजिटल इम्प्रेशन? स्कैन बॉडी यूज़ करते हैं, स्कैन करते हैं, इट्स गुड. बहुत बार क्या होता है, डॉक्टर्स लोग जब नया नया स्कैनर यूज, स्कैन बॉडी भी प्रॉपरली बैठती नहीं है. स्कैन बॉडी में क्या होना चाहिए, जो फ्लैट सरफेस है, जो ज्योमेट्री है, ये प्रॉपरली स्कैन होनी चाहिए. अगर डॉक्टर्स मेजर डिस्टली इसको प्लेस करते प्रॉपरली स्कैन नहीं हो गए. आज द डॉक्टर्स ऑलवेज कीप द स्कैन बॉडी ओरिएंटेशन ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ द लिंगुअल साइड, सो इट इज इजीली स्कैनेबल. ओके, व्हाट टू इन नीड्स. अभी मेरे पास बहुत बार स्कैन आते हैं, जब नया नया स्कैनर कोई डॉक्टर लेता है
बिना स्कैन बॉडी का स्कैन हो जाता है, या फिर एक जॉ स्कैन नहीं होता है, खाली स्कैन बॉडी का स्कैन आता है और अपोजिंग स्कैन आता है। आज दिन तो फॉलो द प्रोटोकॉल, मैक्सिलरी स्कैन, मैंडिबुलर स्कैन, स्कैन बॉडी स्कैन whether it is the maxillary arch or the mandibular arch, and occlusal scan, or if required pre-treatment scan. Okay, I am not going in details of this. और always ask the doctor to scan the scan body details, already जैसे मैंने बोला है. We follow 3 protocols when you are dealing with the implant prosthetics. One is the conventional protocol, one is that is called the traditional way, जो सब लोग कर रहे हैं. Second is the half digital way, and third is the full digital way. In conventional protocol, what we follow? We fabricate a tray. Okay, doctor select the impression post, split it, record the impression. उसके बाद लैब में क्या होता है, डिजिटल मास्क फॉर्म होता है, मॉडल डाला जाता है, वैक्स पैटर्न होता है, मेटल ट्रायल एंड फाइनल प्रोस्थेसिस. नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ मैन पावर, चांसेस ऑफ एरर्स मोर विद द ट्रेडिशनल वे ऑन क्लिनिकल साइड एंड द लैबोरेटरी साइड. ओके, सेकेंड इज द हाफ डिजिटल वे. हाफ डिजिटल में क्लिनिकल केसेस जो है, क्लिनिकल वो वर्क जो है मैन्युअली होगा, लैबोरेटरी वर्क डिजिटली होगा. जो भी एरर्स है लैबोरेटरी एरर्स रिड्यूस हो जाएंगे, क्लिनिकल एरर्स वैसे के वैसे रहेंगे. ओके, थर्ड वे इज अ फुल डिजिटल वे. लेस मैन पावर इन्वॉल्व, कंप्लीटली मशीन मेड और डिपेंडेंट ऑन द योर सॉफ्टवेयर एंड द मशीन्स. स्कैन कंप्लीट डिजिटल वे, लैबोरेटरी वर्क आल्सो कंप्लीट डिजिटल वे, दैट इज द फुल डिजिटल वे. चांसेस ऑफ एरर्स आर लेस. लेकिन इसमें क्या होता है, जब इम्प्लांट प्लेस करते हैं तीनों चीज़ों में अपन हर लैब वाले को डॉक्टर का फ़ोन होता है, अरे मुझे फ्रेमवर्क एकदम पैसिव चाहिए, कैड कैम पे कर, DMLS पे कर, बिलिंग पे कर, कुछ भी कर, टाइटेनियम में कर, बाइस में, लेकिन पैसिव फिट चाहिए. लैब वाला क्या करेगा जब इंप्रेशन ही बराबर नहीं है? द पैसिव फिट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लैब पर्सन, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डॉक्टर. डॉक्टर का इंप्रेशन अगर बराबर नहीं, आप कैड कैम पे करो, बिलिंग में करो या DMLS को, पैसिव फिट आपको आएगा ही नहीं है. ओके, फर्स्ट इंप्रेशन इज इम्पॉर्टेंट. उसके बाद आप कास्टिंग भी करो, प्रीसाइज उसको स्प्लिट करके सोल्डर करो, आपको पैसिव फिट मिलेगा. इट इज़ नॉट अ लैब पर्सन ड्यूटी, दैट स्टार्ट विद द डॉक्टर्स. ओके, ask your doctor to send the information of the scan body, is already told to you. Okay, now impression आ गया, you are satisfied with the impression, impression बहुत अच्छे से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. Now selecting the lab analog. lab analog मैंने जैसे बोला कि हर कंपनी का अलग होते ज्योमेट्री है. जैसे मिनी के लिए ऑस्टियो में मिनी रेगुलर होता है, मिनी का लैब एनालॉग अलग है, रेगुलर का लैब एनालॉग अलग है. जब आप नया नया इम्प्लांट प्रोस्थेटिक्स में हो, लैब में हो, तो डॉक्टर को बोलना है भाई मुझे लिख के दे दे कि कौन सी कंपनी का इम्प्लांट यूज़ किया है. उसके बाद इम्प्लांट का साइज़ क्या है, डायमीटर का एविडेंस, मिनी इम्प्लांट और रेगुलर इम्प्लांट. आपको डॉक्टर्स इम्प्रेशन खाली भेजते, उसके साथ कुछ भी कंपोनेंट्स नहीं भेजते. आपने को कॉल करना पड़ता है, भाई इसके साथ लैब एनालॉग भेजो. और डॉक्टर का कमीशन होता है, मुझे वर्क फास्ट जल्दी चाहिए. डॉक्टर को जब तक मेरे पास पूरे कंपोनेंट्स आ जाते नहीं, उसके बगैर मैं वर्क स्टार्ट नहीं करता. जिस दिन मेरे पास लास्ट कंपोनेंट आपका आएगा, उसके बाद मैं डिलीवरी शेड्यूल बोल सकता हूँ. ओके, क्या होता है, डॉक्टर्स काफ़ी डॉक्टर स्टॉक मेंटेन नहीं करते. आप जब ऑर्डर करते हो किसी लिए अपॉइंटमेंट मंगाना पड़ेगा, फिर वो कंपनी को ऑर्डर प्लेस करेंगे, कंपनी से 4 दिन में आ जाएगा, उसके बाद अपना डिलीवरी शेड्यूल स्टार्ट होगा. नहीं तो डॉक्टर क्या होता है, 1 महीना हो गया इम्प्लांट को अभी तक आया नहीं, तो आपने कंपोनेंट ही 15 दिन पहले दिए, तो मैं 8 दिन में कहाँ से डिलीवर करूँगा. ओके, तो सेलेक्ट द प्रॉपर लैब एनालॉग. इफ इट इज अ मल्टी यूनिट लेवल केस, सेलेक्ट दिस कोनिकल अपार्टमेंट लैब एनालॉग्स. इफ इट इज अ इम्प्लांट लेवल केस, सेलेक्ट द लैब एनालॉग अकॉर्डिंगली. हाउ टू फिक्स द एनालॉग. प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट होता है, इंप्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इंप्रेशन परफेक्ट है फ्रॉम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू, लैबोरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू. अभी जो भी प्रॉब्लम स्टार्ट होगा लैबोरेटरी की वजह से होगा. डॉक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली इंप्रेशन का, उसने प्रॉपर इंप्रेशन दे दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया, उसके बाद भी कुछ नहीं बैठ रहा है, दैट इज लैबोरेटरी फॉल्ट. और लैबोरेटरी फॉल्ट स्टार्ट विद द लैब एनालॉग्स. लैब एनालॉग क्या होता है, बहुत बार डॉक्टर एक ही एनालॉग मल्टीपल टाइम्स यूज़ होता है. आज एक केस के लिए यूज़ किया, ऐसे नहीं कि एक केस के लिए यूज़ किया और डिस्पोज कर दिया उसको. ये सालों साल एक ही लैब एनालॉग चलेगा. जब आपके पास लैब एनालॉग आया तो देखना उसको कहीं डेंट वगैरह तो नहीं है. बहुत बार लैब एनालॉग क्लिनिक में जब निकालते हो, हथौड़ी से निकालते तो वहाँ पे डेंट आ जाता है. पर वैसा लैब एनालॉग आपके पास आता तो बराबर फिटिंग नहीं होगा. अपन क्या करते हैं, लैब एनालॉग लगा दिया, स्क्रू टाइट कर दिया, आपको लगता है कि बैठ गया है, लेकिन वो प्रॉपरली बैठना चाहिए. जहाँ तक इम्प्लांट्स की मार्किंग्स है, इंप्रेशन पोस्ट की मार्किंग है, वहाँ तक प्रॉपरली बैठना चाहिए. प्रॉब्लम कहाँ लग सकता है, बहुत बार
लैब लॉक के अंदर कोई प्लास्टर गया हो रहता है तो स्क्रू प्रॉपरली टाइट रहता है। ऑलवेज चेक फॉर द वर्टिकल मूवमेंट। जब आप लैब लॉक फिक्स करते हैं तो वर्टिकल प्ले भी नहीं चाहिए। अगर वर्टिकल प्ले माइक्रोस में भी है तो आपका प्रोस्थेसिस बैठेगा नहीं। अब मेन प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप क्या होता है इंप्रेशन पोस्ट का मैंने बताया कि जैसा क्लोज ट्रे ओपन ट्रे है, क्लोज ट्रे के लिए ओपन के लिए जब आप ये करते हो तो एक विंग्स रहता है इंप्रेशन पोस्ट में, ताकि इंप्रेशन में प्रॉपरली लॉक हो जाए। क्योंकि काफ़ी कंपनी के इंप्रेशन पोस्ट की ज्योमेट्री स्ट्रेट रहती है, उसमें विंग्स वगैरह नहीं होते, तो ऐसे इंप्रेशन पोस्ट रोटेट होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। जब आपका लैब लॉक आपका असिस्टेंट या लैब टेक्नीशियन लगा रहे जो लैब में है, जब फिक्स करते हैं यहाँ से जब टाइट करेगा तो अंदर से इंप्रेशन पोस्ट रोटेट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपकी इंप्रेशन अननोटिस रोटेट हो गई और उसने आपको बताया नहीं वैसे मॉडल पोर हो गया, आप कुछ भी करो आपका पोस्ट इंप्रेशन फाइनल प्रोसेस बैठेगा नहीं। तो आई हैव टू अवॉइड दैट। जब भी आप लैब लॉक फिक्स करते हो, लैब लॉक को यहाँ पे होल्ड करना है, पहले थोड़ा सा टाइट कर लो, जब आपको फाइनल टाइट यहाँ पे होल्ड करो और यहाँ से स्क्रू टाइट करना है फुल्ली। तो क्या होगा, ये इंप्रेशन पोस्ट अंदर का जैसा भी हिलेगा नहीं या रोटेट नहीं होगा। और फुल्ली टाइट करना है, तो उसमें मोमेंट कुछ भी नहीं चाहिए। अगर एक थ्रेड भी आपको प्रॉपर टाइट नहीं तो आपके प्रोस्थेसिस में प्रॉब्लम आए। ओके, लाइक दिस। अभी बहुत बार सिचुएशंस क्या होते हैं, अपने पास ऐसे इंप्रेशंस आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द इम्प्लांट एंगुलेशंस। लैब लॉक एक दूसरे को टच होते हैं। अगर आपके पास एडिक्वेट नॉलेज नहीं, आपने वैसे ही टाइट कर दिया तो क्या होता है, आपका एक लैब लॉक तो बैठ जाता है, सेकंड लैब लॉक बैठता नहीं है, वो माइक्रॉन्स में ऊपर रह जाता है। अगर ऐसे सिचुएशन आप मॉडल पोर करते तो यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ गया। तो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशंस, पहले एक लैब लॉक फिक्स कर दो प्रॉपरली, सेकंड लैब लॉक को कट कर दो, फिर इसको बिठाओ। यहाँ पे 1 मिलीमीटर गैप चाहिए, थोड़ा भी टच नहीं होना चाहिए। थोड़ा टच भी हो रहा है तो दैट मीन्स पूरा बैठा नहीं है, उसमें प्ले आया है। तो ऑलवेज टेक केयर ऑफ सच केसेस व्हाइल पोरिंग द मॉडल्स। ओके, हाउ टू डील विद द क्लोज ट्रे इंप्रेशंस। क्लोज ट्रे इंप्रेशंस जब भी आपके पास आता है, सिंगल यूनिट का आता है, पहले देखना कि ये जो ज्योमेट्री इंप्रेशन पोस्ट प्रॉपर रिकॉर्ड हुई है क्या। बहुत बार इसमें प्ले होता है, ये पूरा रिकॉर्ड नहीं होता है, राइट। या फिर वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई रहती है इंप्रेशन मटेरियल की, तो आपका इंप्रेशन पोस्ट जो है लूजली बैठता है। अगर इंप्रेशन पोस्ट आपका लूजली बैठा तो पर्पस पूरा खत्म हो जाता है वहाँ पे। ये ज्योमेट्री क्या होता है, यहाँ पे जैसे ज्योमेट्री का ट्रायंगुलर पार्ट दिख रहा है वो यहाँ पे रिप्लिकेट होता है। आपको लैब लॉक को कनेक्ट करना है इंप्रेशन पोस्ट के साथ और उसको इंसर्ट करना है सेम पोजीशन पे। ये आइडिन का है, दे हैव अ ट्रायंगुलर ज्योमेट्री। ऑस्टियम का है, मतलब आइडिन का है, बायोल का उसमें फ्लैट सरफेस रहती है ओरिएंटेशन। वो फ्लैट सरफेस देखना इंप्रेशन में कहाँ पे है, वो फ्लैट सरफेस का आपका बराबर इंप्रेशन पोस्ट वहाँ पे बैठना चाहिए। और इंप्रेशन पोस्ट आप जब भी बिठाओगे स्नगली बैठना चाहिए, उसमें मोमेंट नहीं चाहिए। मोमेंट है रिपीट द इंप्रेशन, वर्टिकल प्ले है रिपीट द इंप्रेशन, स्लगली भी स्लगली बैठना चाहिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा प्रोस्थेसिस में। क्लियर हाउ टू कनेक्ट द लैब लॉक इन क्लोज ट्रे एंड ओपन ट्रे। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जिंजर मास्क फॉर्मेशन। बहुत सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स भी मॉडल जब क्लिनिक में पोर होते हैं जिंजर मास्क पोर नहीं करते, डायरेक्टली इंप्रेशन पोर कर देते हैं। दैट इज नॉट एडवाइजेबल इन इम्प्लांट डेंटिस्ट्री। लैब वाले भी बहुत बार कहते हैं, डॉक्टर से काफ़ी लैब वाले क्या खुद कुछ करते नहीं है, वर्क कलेक्ट करते हायर सेंटर को भेज देते हैं। वहाँ पे क्या कहते हैं, वो लैब आके मॉडल डायरेक्ट पोर करते, जिंजर मास्क यूज़ नहीं करते। ऐसे केसेस में अपन काम नहीं कर सकते। ओके, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द जिंजर मास्क? It forms a removable gingival mask that retains the outline of the gingiva। जो इमरजेंस प्रोफाइल डॉक्टर ने इतनी मेहनत से क्रिएट किया है, क्योंकि एक इमरजेंस प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए सॉफ्ट टिश्यू हैंडल करने के लिए डॉक्टर्स को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है टू गिव द एस्थेटिक रिस्टोरेशंस। अपना काम है उसको प्रिजर्व करें। तो आप जब जिंजर मास्क पोर करते तो इमरजेंस प्रोफाइल वहाँ पे रिटेन होता है या डुप्लीकेट होता है। और जब भी आप वैक्सअप वगैरह करते हो तो आप जिंजर मास्क निकाल के आपको इम्प्लांट की आउटलाइन प्रॉपर मिलती है, वहाँ पे प्रॉपर बाउंड आप वैक्सअप्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो लाइक दिस। व्हाट आर द मटेरियल्स यूज फॉर द जिंजर मास्क? प्रीवियसली जब इनिशियली 10 साल पहले इम्प्लांट स्टार्ट किया था मैंने, रबर बेस भी हम लोग यूज़ कर सकते थे, लाइट बॉडी जो आता है वो भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो क्या होता है टीयर होता है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती है, फट जाता है। ओके, बट नाउ इट इज वेरी गुड मटेरियल्स आर अवेलेबल, स्कैनेबल जिंजर मास्क आर अवेलेबल इन द मार्केट, यू कैन यूज दैट। हाउ दे आर यूज? ओके, यू हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोटोकॉल। अभी बहुत बार क्या होता है, जिंजर मास्क तो पोर करते हैं, लेकिन जब जिंजर इंप्रेशन निकालते हैं, अपन मॉडल निकालते हैं, जिंजर मास्क निकालते हैं, आधा प्लास्टर अपना अबटमेंट के ऊपर रहता है।
दैट इज़ नॉट द वे। फिर आपको ट्रिम करना पड़ता है अबटमेंट्स प्लास्टर को, फिर आपका अबटमेंट बैठेगा। ओके, वी हैव अ सेपरेटर विद द, हर एक कंपनी का सेपरेट आता है। सेपरेटर में तो आप वैसलीन भी यूज़ करते हो, जस्ट फाइन कोट वैसलीन का अप्लाई करो ताकि वो सिलिकॉन एक दूसरे को चिपके नहीं। ओके, लैब लॉक प्रॉपरली प्लेस कर दे, स्प्रे यूज़ किया है, जिंजर मास्क पोर करना है। मास्क कहाँ तक पोर करना है, जो आपका लैब लॉक इम्प्रेशन उसका कनेक्शन होता है उसके 2 मिलीमीटर ऊपर, वहाँ तक आपको जिंजर मास्क पोर करना है। उसके नीचे नहीं, ज़्यादा डीप भी जरूरत नहीं, अननेसेसरी वी आर वेस्टिंग द मटेरियल। 2 मिलीमीटर ऊपर सफिशिएंट है। ओके, उसके बाद उसको प्रॉपरली कट कर दो। बहुत बार क्या होता है, इम्प्लांट्स और एडिशंस जो नज़दीक होते हैं, अगर आपका जिंजर मास्क यहाँ पे फ्लो होता है तो आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट चले जाएगा एडिशन टूथ का। तो फाइन ब्लेड से आप इसको शार्पली कट कर सकते हो, जितना चाहिए, जितना आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट से थोड़ा सा दूर चाहिए, ताकि मॉडल में आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट प्रॉपरली आ जाए। ओके, सी दिस मॉडल विथ जिंजर मास्क। ये निकलने के बाद आपके इम्प्लांट या फिर आपके लैबों की आउटलाइन क्लियरली दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप अबटमेंट इजीली फिक्स कर सकते हो, मार्जिन्स मैनिपुलेट कर सकते हो, वैक्स पैटर्न प्रॉपरली डाल सकते हो। ओके, फुल माउथ केसेस के लिए फुल आर्च पोर करना है। सी दिस मॉडल विथ जिंजर मास्क एंड दिस मॉडल विदाउट जिंजर मास्क। विदाउट जिंजर मास्क पूरा पास्ट आउटलाइन क्रिएट कर लेता है। अभी इसमें इमरजेंसी प्रॉपर जब मुझे अबटमेंट बिठा है तो अबटमेंट यहाँ पे स्टक हो जाएगा प्लास्टर को, फिर मैं प्लास्टर को ट्रिम कर दूंगा तो जिंजर आउटलाइन जो डॉक्टर ने क्रिएट की पूरा वैनिश हो जाएंगे। फिर आपका क्राउन जब बन के जाएगा तो बल्कि बनेगा, ऊपर ब्लांचिंग आएगा, इंटरनल पेशेंट को पेन होगा, राइट। तो जिंजर मास्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इम्प्लांट डेंटिस्ट्री। मॉडल पोरिंग, जब आप मॉडल पोर करते तो बबल फ्री मॉडल चाहिए, आप लोग रोज करते इसमें ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं। बट व्हेन वी आर डीलिंग विद द क्लोज टू इम्प्रेशन पोस्ट, क्लोज टू इम्प्रेशन पोस्ट क्या कर रहे हैं अपन, लेके डायरेक्टली इसमें प्लेस कर रहे हैं, उसके साथ फिक्स नहीं कर रहे हैं कुछ। जब आप मॉडल टैप करते हो पोर करने के लिए, अगर क्लोज टू इम्प्रेशन पोस्ट अगर प्रॉपरली बैठा नहीं या लूज है तो बाउंस हो सकता है या फिर अपनी पोजीशन छोड़ सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल पोरिंग द क्लोज टू इम्प्रेशंस। एंड इन डिजिटल डेंटिस्ट्री डायरेक्टली डिजाइन करो, मॉडल प्रिंट कर सकते हो आप, इतना सब झंझट करने की जरूरत नहीं, लैब लॉक लगाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, आप डिजिटल मॉडल प्रिंट करके उसमें लैब लॉक फिक्स कर सकते हो। नाउ मॉडल रेडी हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या है, मॉडल्स रेडी हो गया, अगर फुल माउथ केसेस में मल्टीपल, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जॉ रिलेशन। डेंचर में क्या करते हैं अपन, जॉ रिलेशन प्लेट लेके भेज देते हैं डॉक्टर्स को। ये इम्प्लांट्स क्यों करता है पेशेंट, क्यों वहाँ पे बोन नहीं है, डेंचर रिटेन नहीं हो रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फुल माउथ केसेस। अगर उस और जॉ रिलेशन प्लेट जब भेजते हैं तो जॉ रिलेशन प्लेट का फिक्स होना चाहिए प्रॉपरली। अगर जॉ रिलेशन प्लेट आपकी लूज है तो डॉक्टर्स के लिए वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड द जॉ रिलेशन। एंड योर डेंचर पेशेंट शुड बी स्टेबल, जो आप रिकॉर्ड बेसिस बनता है वो स्टेबल होना चाहिए। और वहाँ पे रीच ही नहीं है, रिजॉर्व रीच है, जब आप रिकॉर्ड बेसिस रूटीन तरीके से भेजेंगे तो वहाँ पे डॉक्टर लगाएगा नीचे गिरते रहेगा, लगाएगा नीचे गिरते रहेगा। In that case, not able to record the jaw relation properly. So it's our duty to provide the record basis in a proper way. How? Always make them a screw retain. कुछ नहीं करना है, डॉक्टर बोला मैं टेम्परेरी अपॉइंटमेंट भेज दे, मैं आपको स्क्रू रिटेन डेंचर बेसिस बना के दूंगा। स्क्रू रिटेन डेंचर बेसिस क्या करते हैं, यहाँ पे अपना मॉडल रेडी है, एक टेम्परेरी अपॉइंटमेंट आप 1 यूज़ कर सकते हो, 2 यूज़ कर सकते हो, 3 यूज़ कर सकते हो, डॉक्टर ने जितना दिया ये उसमें फिक्स होगा रिकॉर्ड बेस में, और ये रिकॉर्ड बेस डॉक्टर स्क्रू कर पाएगा इंट्राओरली, तो रिकॉर्ड बेस नीचे गिरेगा नहीं, वो इजीली जॉ रिलेशन ले सकता है। ओके, बट अभी इम्प्लांट केसेस में फ्लेंजेस की जरूरत है क्या, डेंचर में अपन फ्लेंजेस देते हैं, इम्प्लांट केस में फ्लेंजेस देते हैं क्या, तो अपन फिर रिकॉर्ड बेस में फ्लेंजेस की क्या जरूरत है। जब आप रिकॉर्ड बेस में फ्लेंजेस देते हैं तो फॉल्स लिप सपोर्ट रिकॉर्ड होता है, फिर आपने पेशेंट तो बोलते हैं वो ट्रायल के वक्त तो मैं ऐसा दिख रहा था, फाइनल प्रोसेस लिप मेरा अंदर जाते हुए देख रहा है। तो जब भी रिकॉर्ड पेशेंट दे तो कैनल टू कैनल लेवल फ्लेंज निकाल दो, जरूरत नहीं है। फिर रिटेंशन का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, वी आर गिविंग स्क्रू रिटेन डेंचर बेसिस। ओके, देयर इज नो नीड ऑफ फ्लेंजेस कैनल टू कैनल। और पार्शियल रिचुअल्स केसेस है, 3-4 इम्प्लांट के केसेस है, आप डॉक्टर्स को बोल सकते हो, आप फॉर्मर्स भी यूज़ कर सकते हैं रिकॉर्ड बेसिस के लिए, बड़े वाले फॉर्मर्स आते हैं वो लगा दो, उसके ऊपर आप बाइट रिकॉर्ड करते हो। ओके, या फिर ऑलवेज गिव class written record basis to the doctors. Okay, but these bites are tentative bites. क्यों tentative bites है, always better try कि वो वापस बाइट रिकॉर्ड करना है। क्या था बहुत बार
फुल माउथ केस होती है, प्रॉपर ऑक्सीजन सब आ जाता है, लेकिन पेशेंट फाइनल प्रोसेस जब डिलीवर करते हैं पोस्टीरियर में थोड़ी से 0.5 मिलीमीटर के गैप्स आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? डेंचर में तो ये प्रॉब्लम नहीं होता है। डेंचर अपन यही रिकॉर्ड बेस पे लेते हैं, पेशेंट को डेंचर देते हैं, एडजस्ट हो जाता है ऑक्सीजन। ये होता है टिश्यू कॉम्प्रेसिबिलिटी। डेंचर में क्या होता है? टिश्यू कॉम्प्रेस होता है, सॉफ्ट टिश्यू कॉम्प्रेस। लेकिन आप रिमूवल प्रोसेस दे रहे हो डेंचर, तो वो कॉम्प्रेसिबिलिटी वैसे एडजस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अपन इंप्रेशन कहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं? ओवर द रिकॉर्ड बेसिस। यहाँ पे टिश्यू कॉम्प्रेस होता है, लेकिन ऐसे आपको फाइनल प्रोसेस डिलीवर वहाँ पे फिक्स प्रोस्थेसिस है, वहाँ पे टिश्यू कॉम्प्रेसिबिलिटी नहीं है, दे आर कम्प्लीटली रिटेन और सपोर्टेड बाय द इम्प्लांट्स। वो डिफरेंस आ जाता है। तो आज डॉक्टर टू रिकॉर्ड द बाइट और द मेटल ट्रायल ऑल्सो, वेर इज अ पार्शियल एडेंचुलस और फुल एडेंचुलस केसेस। ओके, 2 टाइप्स ऑफ द बाइट्स। क्लियर? नाउ बाइट आ गया आपके पास, माउंटिंग कर दिए, सब कर दिया। अभी डॉक्टर को अपॉइंटमेंट्स के लिए पूछता है कि अब भाई अपॉइंटमेंट मुझे चाहिए कौन सी। डॉक्टर उसके साथ आपको अपॉइंटमेंट खुद नहीं भेजेगा, कि उनके पास इतना टाइम है कि इंट्राओरल कितना स्पेस है, कॉलर हाइट कितना है, देखो एंगल यूज़ करना है, सिमेंटेबल करना है, स्क्रू टाइट। इट्स आवर ड्यूटी आफ्टर माउंटिंग कम्युनिकेट विद द डॉक्टर रिलेटेड द अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड। हाउ टू सेलेक्ट द अपॉइंटमेंट्स? It depends on the type of prosthesis first, whether you are going for the screw-tin prosthesis or cement-tin prosthesis. अभी आप लोगों को पता है कि cement-tin के लिए कौन सी अपॉइंटमेंट चाहिए, screw-tin के लिए अपॉइंटमेंट कौन सी चाहिए और कब चाहिए, कितना डिस्टेंस है, वो सिचुएशन के अंदर आपको डिसाइड करना है। Whether it is individual crown or splinted prosthesis, आप सिंगल यूनिट दे रहे हो, always prefer hex अपॉइंटमेंट। जॉइंट प्रोसेस ऑलवेज गो फॉर द नॉन अपॉइंटमेंट। अगर सिंगल के लिए आप नॉन एक्स यूज़ करोगे तो आपका अपॉइंटमेंट क्राउन रोटेट होते रहेगा, प्रोसेस रोटेट होगा। अगर मल्टीपल के लिए आप हेक्स यूनिट यूज़ कर रहे हो, इम्प्लांट पैरेलल नहीं होता है तो आपके हेक्स कनेक्शन बैठेगा नहीं वहाँ पे, राइट? अपॉइंटमेंट यू हैव टू सेलेक्ट। देन इम्प्लांट एंगुलेशन, बेटर टू गो फॉर द स्ट्रेट अपॉइंटमेंट और एंगल अपॉइंटमेंट, दैट डिपेंड्स अपॉन द इम्प्लांट एंगुलेशन। एंड जिंजर कॉलर हाइट, जैसा 1 मिलीमीटर कॉलर हाइट अपॉइंटमेंट चाहिए, 2 मिलीमीटर चाहिए, 3 मिलीमीटर चाहिए, 4 मिलीमीटर। Like that you have to select the appointments. I show you, say gingival collar height. अभी आपका मॉडल है, कंसिडर एज अ मॉडल। आपका इम्प्लांट का लैब का मार्जिन दिखता है, ये जिंजावल मास्क है। पेरिडोंटल प्रोब या कैलिपर से आपको वो डेप्थ मेजर करना है। सो बट इट इज 4 मिलीमीटर कॉलर हाइट डेप्थ है इम्प्लांट और सॉफ्ट टिश्यू सरफेस। और एंटीरियर एस्थेटिक जोन में आप इम्प्लांट दे रहे हो 0.5 1 मिलीमीटर, आपको सब जिंजावल चाहिए और 3 मिलीमीटर की हाइट है, तो आप डॉक्टर टू सेंड 2 मिलीमीटर कॉलर हाइट अपॉइंटमेंट। ओके, लाइक दैट। अगर आपको इक्वी जिंजावल पोस्टीरियर में देना है तो 3 मिलीमीटर डेप्थ है, 3 मिलीमीटर कॉलर हाइट का अपॉइंटमेंट मंगाओ। लेकिन बहुत बार क्या होता है 3 मिलीमीटर का अवेलेबल नहीं रहता है, 4 मिलीमीटर का है, आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, मिलीमीटर शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन कुछ कंपनी जैसा मायराइड कंपनी था, उनका अपॉइंटमेंट काफ़ी कोनिकल थे, उनके आप मार्जिन आप शिफ्ट ही नहीं कर सकते थे। तो आपको पता होना चाहिए कंपनी का अपॉइंटमेंट आपने खुद हैंडल किया हुआ चाहिए कि इसमें कितना शिफ्ट कर सकते हो, वहाँ पे टेपर कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। आप बोलेंगे मैं 3 मिलीमीटर मार्जिन शिफ्ट कर दूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पे टेपर स्टार्ट होता है अपॉइंटमेंट का। ओके, लाइक दिस। अब यहाँ पे टेपर है तो मैं यहाँ से ज़्यादा यहाँ पे कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा टेपर है नीचे में मार्जिन शिफ्ट नहीं कर सकता, नहीं तो मेरा अपॉइंटमेंट काफ़ी नैरो हो जाएगा, ओवर ट्रिम हो जाएगा। ओके, सपोज दिस इज अ केस। अब यहाँ पे मुझे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ऑर्डर करना है। अभी डॉक्टर ने बोला मुझे स्किन प्रोस्थेसिस चाहिए, इसके लिए ये कंडीशन में मुझे समझेगा नहीं कौन सा अपॉइंटमेंट चाहिए। जब मैं अपॉइंटमेंट लगा के देखता हूँ स्ट्रेट, ये स्ट्रेट है, ये एंगल में, स्क्रू-इन पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि इम्प्लांट एंगुलेशंस आर नॉट पैरेलल, और एक केस के लिए डॉक्टर मल्टी यूनिट्स तो यूज़ नहीं करेगा। ओके, तो दिस वन इज परफेक्ट स्ट्रेट। यहाँ पे कौन सा लगेगा? एंगल अपॉइंटमेंट। एंगल अपॉइंटमेंट यूज़ किया मैंने, दोनों पैरेलल हो गए। लेकिन मेरे पास जो डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट भेजा वो लॉन्ग है, कॉलर हाइट भी ज़्यादा है, मेटल डिस्प्ले ज़्यादा है। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, उसको मील करूँगा। मुझे कितना सिरेमिक के लिए 2 मिलीमीटर की स्पेस चाहिए, रिटेंस के लिए 4 मिलीमीटर अपॉइंटमेंट चाहिए, ये पैरामीटर्स मुझे पता है। वो हिसाब से मैं अपॉइंटमेंट को चॉपर कर दूँगा, हाइट कम कर दूँगा, मार्जिन्स भी मैं इक्वी जिंजावल, सुप्रा जिंजावल, सब जिंजावल जितना चाहिए उस हिसाब से शिफ्ट कर दूँगा। ये अपॉइंटमेंट हो गया। फिर डॉक्टर का फ़ोन आया, नहीं उसमें सीमेंटेबल नहीं चाहिए, मुझे रिटेंशन का प्रॉब्लम आएगा, बार बार निकलता है। अभी इम्प्लांट तो पैरेलल नहीं है, मैं स्क्रू-इन दे नहीं सकता, तो व्हाट आई हैव ऑप्शन, एक स्क्रू-इन करूँगा, एक सीमेंटेबल। इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्रू एंड सीमेंटेड प्रोस्थेसिस। ओके, जब ल्यूट करेंगे इसको टेम्परेरी सीमेंट से ल्यूट करेंगे, इसको स्क्रू-इन करेंगे। फ्यूचर में कभी निकाले तो अनस्क्रू कर दो, निकाल सकते हैं, और एक स्क्रू-इन होने की वजह से निकलेगा भी नहीं। तो जो भी पर्पज़ है सॉल्व हो रहा है मेरा।
तो इसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है? अभी स्क्रूटेन के लिए कास्टेबल यूज़ करूँगा इसके लिए। अगर कास्टेबल नहीं चाहिए, डॉक्टर बोलता है यार मैं कास्टेबल नहीं, उसके प्रॉब्लम आते हैं, कनेक्शन फिर आप लोग घिसते हो, ये करते हो, गो फॉर द टाइप बेसिस ऑफ स्कैन बॉडीज, या फिर डिजिटली स्कैन करो इसको। सो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस फॉर दिस केस। समझ में आ गया कब कहाँ पे क्या कल सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं? ओके। अगर मल्टीयूनिट के केस है तो कोनिकल कास्टेबल आप यूज़ कर सकते हो। हाउ टू मिल द अबटमेंट नाउ? अबटमेंट सेलेक्ट हो गए, प्रोस्थेसिस फाइनल हो गया, यहाँ पे हाइट बराबर है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हाइट ज़्यादा है, यहाँ पे मार्क कर दिया, मुझे 2 मिलीमीटर स्लैब के लिए स्पेस कर दिया, मैंने इतना कट कर दिया। अभी मैं इसको शिफ्ट करूँगा नीचे मार्जिन को, तो मार्जिन को शिफ्ट कर दिया, मेरा अबटमेंट मिलिंग कंप्लीट हो गया। अभी इंपॉर्टेंट क्या रहता है, जब अबटमेंट मिलिंग पैरेलल वगैरह मार्जिन सब हो गया तो ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है। आप अगर विदाउट ओरिएंटेशन गुरु अगर डॉक्टर को अबटमेंट भेजोगे, आपने कुछ भी नहीं किया, ये अबटमेंट मिल करके प्रोस्थेसिस बना दिया, ऐसे कैसे भेज दिया, डॉक्टर ने एक बार मॉडल के ऊपर से अबटमेंट निकाल दिया, वो 6 डायरेक्शन में बैठता है, तो डॉक्टर को पता होना चाहिए ना अबटमेंट यहाँ से इंट्राओरल कैसे ट्रांसफर करें। अगर वो 6 डायरेक्शन में गलत डायरेक्शन में बिठा दिया, आपका प्रोस्थेसिस बैठेगा नहीं। तो ऑलवेज गिव ओरिएंटेशन ग्रुप, दिस वन डेप्थ ग्रुप, और ऑलवेज ट्राई टू गिव द बक्कल साइड। अगर नहीं पॉसिबल है तो जहाँ पे बल्क आपको मेटल का मिल रहा है वहाँ पे आप दे सकते हो, ताकि 1 मिलीमीटर डेप्थ होनी चाहिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट डाटा? ओरिएंटेशन ग्रुप, अबटमेंट यहाँ पे मार्क कर दो, डॉक्टर को समझाएगा कि यहाँ पे है, वो निकालेगा ये डायरेक्शन में इंट्राओरल लगा देगा, तो आपका प्रोस्थेसिस इजीली बैठेगा। ओके। बहुत बार आप लिंगुअली देते हैं, लेकिन क्या होता है डॉक्टर्स को लिंगुअली ओरिएंट करने के लिए डिफिकल्ट जाता है कि विजिबिलिटी नहीं रहती। ऑलवेज ट्राई टू गिव ऑन द बक्कल साइड, नॉट ऑन द लिंगुअल साइड। ओके। अनदर पर्पज, अगर सिंगल यूनिट रिस्ट्रिक्शन है, दैट विल एक्ट एज अ एंटी रोटेशनल ग्रुप। अपना क्राउन ट्रिपिंग कहता होता है स्क्वेरिश होता है, मोलर प्रीमोलर एंटीरियस जो भी है वहाँ पे क्राउन रोटेट नहीं होता है, पर अबटमेंट का डायरेक्शन कैसा है? दे आर राउंडेड। अगर इसके ऊपर डायरेक्ट क्राउन दोगे विदाउट ओरिएंटेशन ग्रुप तो क्राउन रोटेट होगा। ऑलवेज गिव दिस ग्रुप दैट विल लाइक द एंटी रोटेशनल ग्रुप। ये ग्रुप को बाद में क्राउन में घिसना नहीं है, वो मेंटेन होनी चाहिए ताकि आपका क्राउन एक ही डायरेक्शन में बैठे, रोटेट ना हो। क्लियर? राइट। नाउ दिस केस इज रेडी फॉर द फर्दर स्टेप। अबटमेंट मिलिंग और सब हो गए। डिजिटली इट इज ईजी। डिजिटली आप अबटमेंट जैसा चाहिए एंगल में मार्जिन कॉलराइट इमरजेंस प्रोफाइल डिजाइन कर सकते हो। ओके। अगर फुल माउथ केसेस है तो फुल माउथ केसेस में भी आपको हर अबटमेंट को ओरिएंटेशन ग्रुप देना है और कास्ट के ऊपर मार्किंग करके भेजना है। ओके। परमानेंट मार्किंग। बहुत बार क्या होता है, अपन मार्कर पेन से मार्किंग करते हैं, सब फिनिश होने के बाद अपना डीलर क्या करते हैं, स्टीम क्लीन करता है, स्टीम क्लीन करके मार्किंग चली जाती है, फिर वैसे ही डॉक्टर के पास वर्क जाता है, और डॉक्टर के पास असिस्टेंट क्या करता है, निकाल के एक एक अबटमेंट के हाथ में देता है, फिर समझ में आता है कि यहाँ पे कहाँ पे लगा हुआ था। तो बारीक बर लो, बर से प्लास्टर को ट्रिम करो तो मार्किंग परमानेंट रहेगी। अभी मेरे पास परसों एक केस आ गया, मैंने फुल माउथ का केस भेज दिया डॉक्टर के पास, उनके असिस्टेंट अबटमेंट ट्रायल वगैरह सब हो गया, और डॉक्टर को बोलना भाई जब मेरे पास वर्क भेजेगा तो वही अबटमेंट वही पोजीशन पे लगा के भेज। वो क्या कि असिस्टेंट ने अपर लोअर एक डब्बे में डाल के भेज दिया अबटमेंट, टोटल 12 अबटमेंट अपर लोअर सब मिक्स हो गए। 3 दिन लगे वो ओरिएंट करने के लिए कि एक एक अबटमेंट लगा के फिटिंग देखो, एक एक अबटमेंट लगा के देखो, अपर का देखो, लोअर का देखो। डॉक्टर को बोला ऐसा वर्क नहीं मिल रहा है, 8 दिन हो गए, बोला 4 दिन मेरे तो अबटमेंट फिक्सेशन में गए, बोला जब वो अबटमेंट बैठेंगे प्रॉपर्ली तब मैं वर्क डिलीवर करूँगा। तो ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार डॉक्टर असिस्टेंट के ऊपर असिस्टेंट ने मिक्स कर दिया तो अपना हेडेक काफ़ी बढ़ जाता है। तो अपन बाद में डॉक्टर को भेज के बोलना चाहिए अभी लगा के दें, इतनी डेयरिंग अपनी नहीं है। ओके। सो कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फुल माउथ केसेस, अबटमेंट सिलेक्शन हो गया, अबटमेंट मिलिंग हो गई, यू हैव टू फॉलो द डेंचर स्टेप्स। टी सेटिंग कर लो प्रॉपरली, टी सेटिंग का ट्रायल लो, डॉक्टर को भेजो, कन्फर्म योर जॉ रिलेशन रिकॉर्ड्स। इसके साथ आप जी ट्रायल्स भी भेज सकते हो। टी सेटिंग से आप जी ट्रायल बनाओ, पैथोलॉजी के जी ट्रायल भेज सकते हो। टी सेटिंग हो गई, आपके एस्थेटिक्स वगैरह जॉ रिलेशन पूरा वेरीफाई हो गया, सेंट्री वर्टिकल सब हो गया। अभी आपका इंप्रेशन बराबर था वो भी वेरीफाई करना है ना। अगर आप कास्टिंग करते हो बाद में फिटिंग नहीं आए तो कौन रिस्पॉन्सिबल। तो ऑलवेज प्रिपेयर अ जी ट्रायल। ओके। पहले क्या होता है अपन पैथोलॉजी में जी ट्रायल, पैथोलॉजी थोड़ा फ्लेक्स होता है। सर पैथोलॉजी की जी ट्रायल तो बहुत अच्छे से फाइनल प्रोसेस नहीं बैठ रहा है, ये प्रॉब्लम आता है।
Okay, this is not advisable कि फ्लेक्स होने की वजह से ट्राई टू गो फॉर द मोर रिजिड जिग ट्रायल्स. मोर रिजिड जिग ट्रायल्स क्या है? Nowadays we are providing with the light cure sheets. लाइट क्योर के जो शीट आते हैं अपन ट्रे के लेवल यूज़ करते हैं, इजीली बनता है. दे आर मोस्ट रिजिड जस्ट लाइक ए मेटल. आप फाइनल जिग ट्रायल या मेटल ट्रायल की तरह दे सकते हो. अगर आप जर्कोनिया कर रहे हो, फुल माउथ केसेस कर रहे हो, हाई एस्थेटिक केसेस कर रहे हो, बाद में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए. ऑलवेज गो फॉर द प्लास्टर जिग. प्लास्टर जिग इज अ बेस्ट जिग. प्लास्टर जिग में थोड़ा भी एक्टिव होता है तो प्लास्टर टूट जाता है, राइट? दैट इज कैन बी डन, बट दैट इट इज आवर वर्क. प्लास्टर जिग प्रिपरेशन, ट्रांसपोर्ट करना है, वहाँ पे प्रॉपरली लगना है. बट इज द बेस्ट वन टू वेरीफाई योर इम्प्रेशंस. बाद में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा फिटिंग में. बाद में कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो दैट इज आवर मिस्टेक. वो तो मॉडल पे ही नहीं बैठेगा, इंटरवल ले जाने की जरूरत ही नहीं है. ओके, अगर आप कैड कैम में कर रहे हो तो बिल प्रोसेस भी दे सकते हो. उसमें आपका जॉ रिलेशंस इस तरीके सब वेरीफाइड हो जाएगा और फिटिंग भी वेरीफाई हो जाएगी. नो, ये सब हो गया. डॉक्टर इज हैप्पी, पेशेंट इज हैप्पी विद द फिटिंग, एस्थेटिक अच्छा है, सब अच्छा है. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन द लैब? दैट इज द फाइनल प्रोसेसिंग. That can be done with the casting, conventional way, or we can go with the digital way. In conventional casting, we know the drawbacks. Casting में क्या क्या issues आते हैं, उसमें डिटेल्स में बताने की जरूरत नहीं. और the best for that. In CAD/CAM, we have two technologies, that is subtractive technology and additive technology. In subtractive technology, what is the milling? You can mill the chrome, cobalt, or titanium, or any kind of material. And second is the additive technology, that is the resin printing, but that is not a final product. Again, we have to cast. उसके साथ भी issues है. क्यों कास्टिंग के इश्यूज तो ऐसे रहेंगे ना, जो वैक्स के प्रॉब्लम्स है वो वहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं. तो फाइनली इज अ 3D प्रिंटिंग, दैट इज मेटल प्रिंटिंग. बट आज पर द माई व्यूज, मेटल मिलिंग इज ऑलवेज बेटर देन 3D प्रिंटिंग. 3D प्रिंटिंग में क्या होता है, अपन बोलते हैं इंटरनल कनेक्शन बहुत अच्छे से बैठता है, प्रॉब्लम रहता है 3D प्रिंट किया हुआ है. क्योंकि पहले स्लाइड में हम कास्टेबल को क्या कर रहे थे, डॉक्टर को जब भेजते वर्क, हम 3D प्रिंट में जो ऑक्साइड लेयर से ब्लैक कलर आता है वैसे ही भेजते हैं क्या कनेक्शन, उसको भी पॉलिश करते ना अपन. पॉलिश करने के बाद आगे क्या हो गया, बर यूज़ किया. बर यूज़ करने में जो भी उसका हेक्सागोनल कनेक्शन है, शार्प लाइन एंगल्स से उसके 90 डिग्री पूरे राउंडेड हो जाते हैं. इफ़ यू आर नॉट डन प्रॉपरली, आगे जो माइक्रो लेवल पे जब बात करते हैं इम्प्लांट में, दैट विल अफेक्ट. इन मिल कनेक्शन दैट इज अ वर्जिन कनेक्शन, उसमें अपन कुछ नहीं करते, डायरेक्टली फिटिंग होता है. ओके, ऑलवेज या फिर 3D प्रिंट कर रहे हैं तो उसके साथ भी टाई बेसिस यूज़ करो. दैट इज द मोस्ट एक्यूरेट प्रोसेसेस. आगे कन्वेंशनल वे से आप जब हाइब्रिड डेंचर्स वगैरह अभी भी बनाते हैं, प्रीवियसली बनाते हैं, अभी काफ़ी परसेंटेज कम हो गया हाइब्रिड डेंचर्स का. बट यू ऑलवेज गो फॉर द जिग ट्रायल, दैट इज अ पट्टी इंडेक्स प्रिपरेशन. व्हेन यू आर डीलिंग विद द फुल माउथ केसेस विद द CAD/CAM, PFM और हाइब्रिड, ऑलवेज गो फॉर द पट्टी इंडाइसेस. दैट विल गिव्स द आइडिया अबाउट योर फाइनल रिस्टोरेशन. जो आपने वेरीफाई किया पेशेंट को भी, उसके क्या पोजिशन है टूथ की, आपका प्रोस्थेसिस, टूथ पोजिशन और आपका बार फेमर जहाँ वहाँ पे कितना स्पेस मिल रहा है, दैट इज योर ब्लू प्रिंट. तो हिसाब से आप आपका फ्रेमवर्क, क्योंकि फ्रेमवर्क आप थिन भी नहीं कर सकते, टूट जाएगा. ज़्यादा थिक करेंगे तो स्पेस नहीं मिलेगा, वेट भी बढ़ेगा. बट विद द हेल्प ऑफ दिस सॉरी इंडेक्स, वी कैन मॉडिफाई योर फ्रेमवर्क डिज़ाइन. ओके, देन स्क्रूइंग, यू नो बेटर. व्हाट इज इम्पोर्टेंट, द कास्टिंग. जब भी आप स्क्रू की कास्टिंग करते हो तो स्क्रू एक्सिस जो है वो वहाँ पे अच्छे से आपका इन्वेस्टमेंट मटेरियल फ्लो होना चाहिए. वो ब्लॉक हो गया, आपका पूरा फ्रेमवर्क चला गया. अगर फुल माउथ की कास्टिंग कर रहे हो तो एक ही स्क्रू चैनल आपका ब्लॉक होता है, यू हैव टू रिपीट कंप्लीट वर्क, आपकी पूरी फ्रेमवर्क वो वेस्ट चली जाती है. तो ऐसे वक्त लगता है यार उससे अच्छा मैं DMS करवा लेता, कास्टिंग का हेडेक नहीं, कुछ नहीं, ईजी हो जाता है, राइट. जब आप कास्टिंग निकालते हो तो बहुत बार क्या होता है, ये स्क्रू हेड्स में इन्वेस्टमेंट मटेरियल होता है. आप क्या करते हैं, एक स्ट्रेट पर लेते हैं, वहाँ पे डाल के इन्वेस्टमेंट मटेरियल निकाल देते हैं. लेकिन जो स्क्रू हेड चैनल है, जहाँ पे स्क्रू हेड आपका लॉक हो रहा है, वो डैमेज नहीं होना चाहिए. अगर आपने इन्वेस्टमेंट निकाला, वो डैमेज हो गया, आपका स्क्रू थ्रू चला जाएगा, वहाँ पे स्क्रू लॉक नहीं होगा. या फिर वहाँ पे बारीक बबल है तो पूरा स्क्रू आपका टॉर्क पे नहीं बैठेगा, पूरे थ्रेड से एंगेज नहीं करेगा. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल फिनिशिंग दिस पार्ट्स. ओके, मिलिंग, 3D प्रिंटिंग, नो टेंशन, वो कुछ करना ही नहीं है अपने को. अगेन पैसिविटीज ऑफ फ्रेमवर्क. फिर हम पहले देखो कि कास्ट के ऊपर पैसिव है क्या. अगर आपको लगता है कास्ट के ऊपर पैसिव नहीं है तो डॉक्टर को भेज का मतलब नहीं है. इम्प्रेशन वगैरह तो आपने सब वेरीफाई किया ना, सब प्रॉपर था. अभी कास्टिंग में क्या होता है, बिकॉज ऑफ द कास्टिंग श्रिंकेज पैसिविटी 100% नहीं आती है.
अकॉर्डिंग टू मिश देयर आर 10 to 12 फैक्टर्स। तो मिश का कहना है कि आप कास्टिंग या बाय एनी वे यू कांट गेट अ पैसिव फिट फॉर द स्टूडेंट प्रोसीजर। स्टार्टिंग विद द इम्प्रेशन मटेरियल, ट्रे सिलेक्शन, मॉडल एक्सपांशन, स्टोन एक्सपांशन, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पैसिव फिट ऑफ प्रोस्थेसिस। पर जहाँ जहाँ पे हम प्रॉब्लम कम कर सकते हैं, केयर ले सकते हैं, दैट्स इन आवर हैंड। ओके, ठीक है। यहाँ पे कुछ कारण की वजह से पैसिव फिट नहीं आया है, डॉक्टर को भेज का मतलब है क्या? नहीं है। पहले आप वहीं पे करेक्ट करो भेजने के पहले। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद द फिटिंग देन ओनली सेंड टू क्लिनिक। ओके, ठीक है, आपने भेज दिया का मॉडल के ऊपर बहुत अच्छे से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यू आर हैप्पी, बट इंट्रावरली फिटिंग नहीं आ रहा है। फिर भी होता है ना बहुत बार, डॉक्टर बोलता है मॉडल को पता अच्छे से बैठ रहा है, स्टेप फॉलो किए थे, लेकिन लाइक इंटरवली बैठ नहीं रहा है प्रोस्थेसिस, कहीं ना कहीं ओपन मार्जिन्स आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो क्या करना है? पूरा रिपीट करना है क्या? नहीं है। आप डॉक्टर्स को बोल सकते हो वह स्प्लिट कर दो प्रोस्थेसिस को जहाँ पे नहीं बैठ रहा है, वापस से रीफिटिंग करके पैटर्न रीजन से रीजॉइन करो, पिकअप इम्प्रेशन को, फिर लैब पे शोल्डर वगैरह करके उसको पैसिव कर सकते हैं। दैट इज अल्टरनेटिव। हर चीज़ रिपीट करने की जरूरत नहीं, वी शुड हैव सोल्यूशन फॉर दैट। मेन एम क्या? फिटिंग पैसिव होनी चाहिए। कैसा करना है? वी नो दैट। ओके, सब हो गया। यू आर हैप्पी विद द फिटिंग, डॉक्टर्स हैप्पी, पेशेंट इज हैप्पी, देन आस्क डॉक्टर टू रिकॉर्ड द बाइट और जॉर्जुलेशन और द मेटल ट्रायल आगे, कौन सा भी हो, इधर PFM हो, जर्कोनिया हो, एवरीथिंग, वापस से बाइट लेने के लिए बोलना है। ओके, बाइट लेने के बाद पट्टी इंडेक्स से आप हाइब्रिड नेचर में आप टी सेटिंग पूरा ट्रांसफर कर सकते हो बात के ऊपर, वापस वेरीफाई करो पेशेंट के मुंह में कि सब बराबर है, कि आपने ये हिस्टेरिक्स वगैरह। देन what is important is the basal design, whether it is a hybrid nature, whether it is a PFM, whether it is a zirconia or any kind of prosthesis, the basal design is the most important. Integral surface design is the most important. Hybrid में पहले क्या बोला जाता था? There should be a high water tight design. 1 से 2 मिलीमीटर का स्पेस रख दो, क्लीन होना चाहिए, पानी वगैरह जाना चाहिए। लेकिन नाउअडेज पेशेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते, अरे वहाँ पे स्पेस है, खाना जा रहा है, ये जा रहा है। इनिशियली जब हम 10 साल पहले इम्प्लांट प्रोसीजर तो डॉक्टर्स भी बोलते कि यार नहीं, वहाँ पे खाना अटकने पूरा क्लिनिकली स्पेस दे दे। ओके, नाउअडेज पेशेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं, वहाँ पे बात करने में प्रॉब्लम आ रहा है, एयर पास होती है या पानी चला जाता है। ओके, दैट इज ऑप्शन 2, नो स्पेस बिटवीन द एक्लिक एंड द टिश्यूज, कंप्लीट रिज लैक। ओके, बट इट शुड बी कॉन्वेक्स नॉट कॉन्केव। बेजल डिजाइन जो आपका ये नहीं होना चाहिए, कॉन्केव नहीं होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए। बट अभी रीज का शेप कैसे होता है? रीज होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स को आप कॉन्वेक्स दे सकते हो क्या? नहीं, उसके ऊपर कॉन्केव ही बनेगा। तो इट्स द ड्यूटी ऑफ सर्जन टू क्रिएट अ सॉफ्ट टिश्यू प्रोफाइल। इमीडिएट लोड करके या सर्जरीज करके उनको सॉफ्ट टिश्यू प्रोफाइल क्रिएट करना है कॉन्वेक्स, तो आपका प्रोस्थेसिस कॉन्केव बनेगा। अभी काफ़ी डॉक्टर्स बोलते हैं प्रोस्थेसिस में कॉन्केविटी, रीज अगर कॉन्केव तो उसके ऊपर कहाँ से दूंगा? आस्क देम टू क्रिएट द सॉफ्ट टिश्यू प्रोफाइल फर्स्ट। ओके, एंड दैट इज डॉक्टर प्रेफरेंस। डॉक्टर बोला ये चाहिए दे दो, अपना काम नहीं है वो, इट्स नॉट अवर हेडेक, बट वी शुड नो द व्हाट आर द डिजाइंस अवेलेबल, हाउ दे कैन फैब्रिकेट इट, एंड इट शुड बी वेल पॉलिश। एक्रिलिक में एस्पेरेस अवॉइड करो, क्योंकि एक्रिलिक इज अ पोरस मटेरियल दैट ऑब्जॉर्व्स द प्लाक। ओके, एंड दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम्स। नहीं, फ्लास्किंग वगैरह आप लोगों को सबको पता है हाउ टू प्रोसीड इट, बट when you are dealing with the hybrid prosthesis, always connect the 2 or 3 lamellar to create a tripod connection. ओके, कि आप बिना लैमिनर कनेक्ट किए उसको फ्लास्किंग करोगे, डी-वैक्सिंग होने के बाद आपका बार निकल जाएगा, बार होल्ड नहीं होगा फ्लास्क में, फिर फाइनल एक्लेस में आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ऑलवेज गिव 2 or 3 lamellar, तो आपको ये बार को होल्ड करके रखेगा। जब आप फ्लास्किंग करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, होल में एक्लिक जाएगा पैकिंग करने के बाद, जो स्क्रू चैनल से वहाँ पे अगर एक्लिक चलेगा तो बाद में डिफिकल्ट टू रिट्रैक्ट। तो ब्लॉक दिस स्क्रू चैनल विथ पट्टी और एनी काइंड ऑफ मटेरियल, टेफ्लॉन यूज़ कर सकते हो, पट्टी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी, ताकि यहाँ पे एक्लिक फ्लो नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप एक्लिलाइजेशन कर सकते हो। ओके, आफ्टर फिनिशिंग जस्ट रिमूव द एक्लिक केयरफुली और प्लास्टर इन द स्क्रू चैनल। बेजल डिजाइन आपको पूरा पॉलिश चाहिए, ऑलरेडी डिस्कस किया है। योर प्रोसेस शुड लुक लाइक दिस, वेल पॉलिश। ओके, बहुत बार क्या होता है, स्क्रू एक्सिस ओपनिंग्स लेबल आते हैं कि इट वाज नॉट प्रोस्थेटिक ड्रिवन, इट इज सर्जिकल ड्रिवन, बोन ड्रिवन इम्प्लांट केसेस।
बहुत बार एक्सेस होल वो यहाँ पे आ जाते हैं, और वैसे किसी को एक्सेस ओपनिंग पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करता, वो कंपोजिट से ब्लॉक करते हैं, ये करते, लेकिन वो बाद में डिस्कलर्ड हो जाते हैं। हाउ टू डील विद दोज कंडीशंस? जब हाइब्रिड डेंचर कर रहे हो, यहाँ का टूथ बाजू में निकाल के रख दो प्रोसेसिंग के वक्त, जस्ट एम्प्टी एक्लेशन करना है। एक्सटेंशन करके दो, नहीं बोलना नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? वहाँ पे फूड लॉजमेंट की जांच, क्यों ओवरहैंग हो रहा है ना वहाँ पे, इम्प्लांट को ओवरहैंग कुछ भी नहीं चाहिए, सेल क्लिनजिंग एरिया चाहिए। अगर आप क्या करोगे, इस पे कास्टिंग में क्या करोगे, यहाँ तक एक्सटेंड करोगे मेटल, आपकी मार्जिन कॉलर हाइट यहाँ पे है, दिस अ कॉम्प्रोमाइज केस। अगर यहाँ पे आप एक्सटेंड करते हो, यहाँ पे क्लीनिंग नहीं होगा, फूड लॉजमेंट होगा, तो इम्प्लांट की पूरी वाट लगने वाली है। बहुत इंसिस्ट करना है कर दो, बट दैट इज नॉट एथिकल। मैं तो मना कर देता हूँ, मैं नहीं दूंगा, राइट? कि कुछ दिनों बाद इम्प्लांट फिर अपने ऊपर ही आने वाला है। पेशेंट किसी ना किसी को पहचानता रहता है, पेशेंट को पता रहता है कौन से लैब से बन के आया। 2 साल के बाद पेशेंट आपने को पहले बोलेगा यार वो लैब से बन के आया तो मेरा प्रॉब्लम हो गया। डॉक्टर भी क्या बोलेंगे, वो लैब से बराबर बन के नहीं आया। तो पहले मतलब आपकी डेयरिंग होनी चाहिए ना बोलने की, आपको अगर सेफ रहना है, राइट? अभी मैंने बोला, लेकिन ये चीज़ में मैं कटारा सर को मानता हूँ, उनमें डेयरिंग थी पहले जैसे ना बोलने की, दैट्स व्हाई ही इज अ सक्सेस। जिस उनसे भी डॉक्टर का वर्क आज चिट्ठी लिख के भेज देते थे, ये चेंजेस करके दो, चेंजेस करके दो, उनके पास पूरा वर्क अच्छे से जाता था, तो अच्छे से बना सके वो। अपन क्या करते, जो भी वर्क आया बना के देते, ना बोलने की डेयरिंग नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर हियर। ओके, ठीक है। ये टूथ के बाद में आप पूरा फिक्स हो गया इंट्राओरली, उसके बाद इसको कोल्ड केयर से ल्यूट कर सकते हो, तो ये स्क्रू एक्सेस होल भी आपका हाइड हो जाएगा। बहुत बार पीएफएम केसेस में होता है, राइट? पीएफएम केस में उतना ही पार्ट जो है तो मार्लो डिजाइन टाइप कर दो, वहाँ पे पूरा प्रोसेस ल्यूट होने के बाद डॉक्टर बोला उतना इंप्रेशन लेके भेजो, या फिर डायरेक्टली आप अलग क्राउन बना के दे दो, तो प्रोसेस फिक्स होने के बाद उसके ऊपर क्राउन ल्यूट कर सकते हो। वो भी नहीं करना है, एक्सेस होल है, पूरा फिर सीमेंट होने के बाद डॉक्टर बोला वहाँ पे लैमिनेट टाइप प्रिपरेशन करके दो, एक लैमिनेट बना के उसके ऊपर चिपका दो, दैट इज परमानेंट सॉल्यूशंस। ओके, विद दिस ऑल अबाउट द प्रोस्थेटिक कन्वेंशनल वे। कुछ डाउट्स यहाँ तक? माइक है? इमरजेंस प्रोफाइल के लिए डॉक्टर बोलता है कि हमको आरबीडी नहीं चाहिए, सिंगल वन टू, तो वहाँ पे क्या देना चाहिए? वहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस है, तो यहाँ पे डिटेल 1 घंटे में पूरा कवर में शॉर्ट बताता हूँ मैं। वहाँ पे अगर टॉर्क अच्छा है, डॉक्टर के लीगली टॉर्क अच्छा है, 30-40 न्यूटन का टॉर्क मिलता है, तो आप फिक्स दे सकते हो। अबटमेंट सेलेक्ट करो, या उसमें 2 ऑप्शन डॉक्टर को बोलना इंप्रेशन लेके भेज दें, वो कंडीशन है। लैब में 3 घंटे में आप टेम्परेरी बना के देते हो, प्रॉपर अबटमेंट यूज़ करो, बिल करो, जस्ट फॉलो द स्टेप्स, ऑल द स्टेप्स। डॉक्टर मतलब उनको कटिंग नहीं करेंगे? कटिंग नहीं करना है। एक सिंगल टू इम्प्लांट की बात कर रहे हैं अपन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द क्राउन एंड इम्प्लांट प्लेसेस में लैटरल में इम्प्लांट प्लेस कर दिया है, टॉर्क अच्छा है, पेशेंट को इमीडिएट स्टेरिक चाहिए, इमीडिएट लोडिंग अपने लिए अच्छा है, डॉक्टर्स के लिए भी अच्छा है, पेशेंट डिमांड करते हैं तो भी एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है। अगर टॉर्क अच्छा है तो आप डायरेक्टली इंप्रेशन लो, डॉक्टर को बोलना इंप्रेशन भेजो, आप अबटमेंट सेलेक्ट करो, अबटमेंट को बिल करके टेम्परेरी क्राउन बना के दे दो स्क्रू टेंट, राइट? वो एक ऑप्शन। हाँ, कभी कभार डॉक्टर इम्प्लांट डालने के बाद स्विचर डालते हैं, स्विचर डालने के बाद आप लोग बोलते हैं आरपीडी कभी भी नहीं देना है कि इम्प्लांट के ऊपर आप आरपीडी दोगे, वहाँ पे माइक्रोमोल का प्रेशर में से बोन लॉस की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन मेरीलैंड ब्रिज है उसको, वही ना, काफ़ी है, मैं एक ऑप्शन बता रहा हूँ। एक ऑप्शन हो गया जहाँ पे टॉर्क अच्छा है, फिक्स है, एक आप लैब से बना के लैब से, या फिर डॉक्टर चेयर साइड 1 घंटे में भी क्राउन दे सकता है अगर डॉक्टर्स की स्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं, अबटमेंट चेयर साइड सेलेक्ट करते हैं, अबटमेंट को वहीं पे मिल करके डेंचर टूथ को लैमिनेट टाइप प्रिपेयर करके कोल्ड केयर से पिकअप करके फिनिश करके इमीडिएटली 1 घंटे में क्राउन देते हैं, या फिर लैब में भेजते 3 घंटे में बना के दे देते हैं। वो हो गया फिक्स ऑप्शन। अभी कुछ कारण बेस क्या, तो वहाँ पे ग्राफ्टेड रहता है, इम्प्लांट में ग्राफ्ट क्या रहता है, बोन लॉस रहता है, या प्राइमरी स्टेबिलिटी नहीं रहती, वहाँ पे फिक्स ऑप्शन नहीं दे सकते। आरपीडी इज नॉट एडवाइजेबल, पेशेंट के एक्सेप्ट नहीं करते, इतना पैसा दे निकाले लगाने का क्यों दे रहे? उसके लिए 4 ऑप्शन है अपने। एक तो A6 अप्लायंस। A6 अप्लायंस में क्या होता है, आप जैसे नाइट गार्ड्स वगैरह बनाते हैं, ब्लीचिंग ट्रे बनाते हैं, वैसा ट्रे बनाना है आलाइनर के जैसा, जो मिसिंग टूथ है उसमें फिक्स कर देना है, वो पेशेंट निकाल के लगा सकता है और यूज़ कर सकते हैं कंप्लीटली, वो विजिबल भी नहीं होता है। सेकेंड ऑप्शन डेंचर टूथ रहता है अपना, वी कैन सेलेक्ट दिस कॉल्ड डेंचर टूथ पॉन्टिक।
डेंचर टूथ सेलेक्ट करो, लैटरल वगैरह जो भी शेप है शेड वगैरह मैच कर दो, उसको क्लास 3 कैविटीज बना के कंपोजिट से ल्यूट कर दो एडजेसेंट टूथ को, ईचिंग वगैरह करके 3-4 मंथ्स आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसको बोलना है बाइट नहीं करना है। थर्ड ऑप्शन है मेरीलैंड ब्रिजेस। मेरीलैंड ब्रिजेस डायरेक्टली एक्लिक में दे सकते हो, डिपेंड्स ऑन पेशेंट बाइट फोर्सेस, या फिर मेटल में फैब्रिकेट करो बार टाइप एकदम थीन, उसके ऊपर एक्लिक चीज चिपका दो, दैट इज अनदर ऑप्शन। ओके, डिपेंड ऑन द सिचुएशन आप चेंज कर सकते हो क्या देना है। अभी एक पेशेंट था मेरा, उसको फ्लाई होना था जो यूएस के लिए इमीडिएट, उसको फाइनल जर्कोनिया का ही क्राउन देने के लिए बोला, उसके ऊपर 2 इम्प्लांट थे 3 यूनिट्स के ऊपर जर्कोनिया ब्रीच बोले, टेम्परेरी बोल के वो यूज़ कर लूँगा मैं फिलहाल, क्योंकि उसको एस्थेटिक चाहिए था। ओके, नाउ जस्ट शॉर्ट डेमो ऑफ द डिजिटल वर्कफ्लो। जब भी आप इंट्राउंड स्कैन के केसेस आते हैं, पहले एक्सोकैड में आप इंपोर्ट करते हो डाटा, जो भी करना है एंट्री करते हो, इंपोर्ट करने के बाद ये फाइल आ जाती है, लेकिन फाइल के साथ आपको स्कैन बॉडी फाइल भी होना जरूरी है। ओके, स्कैन बॉडी अपर लोअर मॉडल्स आ गए अपने पास, ओवरलैप हो गए। उसके बाद वी हैव टू सेलेक्ट द स्कैन बॉडी डिटेल्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, जो कंपनी का इम्प्लांट है वो सेलेक्ट करो। स्कैन बॉडी डिटेल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर डॉक्टर ने 7 मिलीमीटर यूज़ किया और 10 मिलीमीटर आपने को इन्फॉर्म किया है और आपने यहाँ पे 10 मिलीमीटर की सेलेक्ट किया, तो वहाँ से वो हिसाब से लेंथ आ जाती है, तो प्रोस्थेसिस इंटरवली बैठेगा नहीं। ओके, स्कैन बॉडी सेलेक्ट हो गई, देन गो फॉर द टाइप बेस्ड सिलेक्शन। टाइप बेस्ड सिलेक्शन अगेन जैसे मॉडल के ऊपर अबॉटमेंट सिलेक्शन किया था अपन, वैसे यहाँ पे टाइप बेस्ड सेलेक्ट करना है। इंट्रा डिस्टेंस आपको सॉफ्टवेयर में दिखाई देता है कि कितना इंट्रा डिस्टेंस है, जिंजॉल हाइट भी यहाँ पे दिखाई देती है कितना डीप है, वो हिसाब से 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर कॉलर हाइट टाइप बेस सेलेक्ट कर सकते हो आप। लेंथ टाइप बेस की मिनिमम 3 मिलीमीटर की होती है, 4 मिलीमीटर, जो भी लेंथ कंपनी से अलग अलग अवेलेबल वो सेलेक्ट कर सकते हैं। 2 मिलीमीटर का सीमेंट स्पेस, सॉरी सिरेमिक स्पेस छोड़ के वो सेलेक्ट हो गया, टाइप बेस सेलेक्ट हो गया। फिर दीज आर द सेलेक्टेड टाइप बेसेस, दे लुक्स लाइक दिस डिजिटली। टूथ लाइब्रेरी से आप बोर्ड सेलेक्ट करो, उसको डिज़ाइन करो प्रॉपरली। ओके, ये आपका क्राउन रेडी फॉर मेल। क्राउन में व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दीज आर द ग्रूव्स, ओरिएंटेशन ग्रूव, दीज आर इंपॉर्टेंट। ये मिलिंग में भी प्रॉपरली आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अपना टाइप बेस ल्यूट करना है उसके ऊपर। अभी जब आप जर्कोनियम बिल कर सकते हो डिजिटली, तो डॉक्टर को आपको टाइप बेस ल्यूट करके देना पड़ता है, दैट इज नॉट सीमेंट स्क्रू टेन प्रोसेस। सीमेंटेशन आप लैब में कर रहे हो, इंट्रावर्नल स्क्रू हो रहा है। ओके, क्लियर? बट बहुत से लैब वाले क्या करते हैं, इनिशियली भी हम लोग क्या करते थे, जीआईसी से लगा के देते थे, टाइप बेस की हाइट कम होती है, बार बार डिसलॉज होता है। यू हैव टू फॉलो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल फॉर ल्यूटिंग दिस टाइप बेसेस। व्हाट इज दिस प्रोटोकॉल? आपके पास प्राइमर्स होना चाहिए। अगर आप पीएफएम भी करते हो डिजिटली, जर्कोनियम भी करते हो, दोनों के लिए ल्यूटिंग प्रोटोकॉल अलग है, दोनों के लिए प्राइमर्स अलग है। अगर जर्कोनियम यूज़ करते हो तो आपको जर्कोनियम प्राइमर्स यूज़ करना है, मेटल यूज़ करें तो मेटल प्राइमर्स यूज़ करना है। ओके, पहले एक दोनों को सैंड ब्लास्ट करना है, सैंड ब्लास्ट होने के बाद टाइप बेस को भी सैंड ब्लास्ट करना है। टाइप बेस को सैंड ब्लास्ट करने के बाद उसको मेटल प्राइमर अप्लाई करना है। आपको मेटल प्राइमर अप्लाई करने के बाद इसको भी सैंड ब्लास्टिंग हो गया, मेटल प्राइमर लगा दिया। जर्कोनियम की केस है, जर्कोनियम प्राइमर लगा दिया। ओके, टाइप बेस को ड्यूल क्यूअर रीजन आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हो, कैलिब्रा, आयोक्लार्का वगैरह, कौन से भी कंपनी का, डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। और टाइप बेसेस सेम ओरिएंटेशन ग्रुप में जाके बैठने चाहिए प्रॉपरली। और जब मल्टीपल केस में आप पे करते हो, टाइप बेस ल्यूट करते हो, तो फटाफट तीनों लगा के मॉडल के ऊपर लग के स्क्रू कर दो, फिर उसको क्यूअर करो, तो जो भी डिस्क्रिपेंसी टाइप बेस है सीमेंट में एडजस्ट हो जाती है। आप अगर बाहर ल्यूट करोगे, क्यूअर करोगे, बाद में मॉडल के ऊपर नहीं बैठ रहा है, दैन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द टाइप बेसेस। उसको ठोक ठोक के निकालना पड़ता है, सिरेमिक डैमेज हो सकता है, जर्कोनियम फ्रैक्चर हो सकता है। क्लियर? नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक इज द ऑक्लूजन। ऑक्लूजन अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स अ बिग टॉपिक, बट यू हैव टू कंसिडर फ्यू पॉइंट्स वाई फैब्रिकेटिंग द क्राउन। अभी क्या है, रूटीन क्राउन कैसा फैब्रिकेट करते हैं अपन? अभी डॉक्टर्स के लिए इम्प्लांट प्रोटेक्टेड ऑक्लूजन वगैरह मीश का दिया हुआ, काफ़ी चीज़ें दिया, नंबर ऑफ फैक्टर दे हैव टू फॉलो। तो ऑलवेज गिव बिग स्टाइल, डॉक्टर्स को पूरा ऑक्लूजन एडजस्ट करके आपको दे देंगे। पर द लैब पर्सन कुछ चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए कि क्राउन कैसा बनाना है, ब्रिज कैसे बनाना है। रूटीन क्राउन ब्रिज में क्या करते हैं, आप क्राउन का साइज पूरा नेचुरल का जैसा है वैसा ही करते हैं, ये इम्प्लांट में वैसा नहीं होता है। फर्स्ट पॉइंट इज एलिमिनेशन ऑफ द प्री मैच्योर ऑक्लूजल कॉन्टैक्ट। वो आर्टिकुलेटर माउंट करने में जितना हो सकता है अपन ने ऑक्लूजन एडजस्ट करके देना है। लास्ट में माउथ इज अ बेस्ट आर्टिकुलेटर इंट्राओरल ऑक्लूजन करेक्शन होकर आ जाएगा, ग्लेज हो जाएगा, फिर डिलीवर हो जाएगा। सेकंड, कंट्रोलिंग द ऑक्लूजल टेबल विड्थ। एडिशन टूथ से 1/3 आपका ऑक्लूजल विड्थ होना चाहिए। इम्प्लांट में बड़े बड़े क्राउन नहीं देना है।
ऑक्लूजल विड्थ नैरो होनी चाहिए इम्प्लांट क्राउन में टू अवॉइड द लैटरल फोर्सेस। क्यों? अपना नेचुरल क्राउन का डायमीटर कैसा होता है? इतना होता है, उसके ऊपर अपन क्राउन देते हैं तो लैटरल फोर्सेस ज़्यादा नहीं होते। लेकिन इम्प्लांट का इमरजेंस इट इज़ 5 मिलीमीटर 0.55 मिलीमीटर, उसके ऊपर हम 10 मिलीमीटर का क्राउन देते हैं तो इट विल क्रिएट लैटरल फोर्सेस ओवर द इम्प्लांट्स अगर आपका क्राउन नॉर्मल साइज का है तो। ओके, सो रेड्यूस द विड्थ ऑफ योर क्राउन। मेजर डिस्टल नहीं, बकोलिंगल विड्थ। मेजर डिस्टल विड्थ रेड्यूस करें तो ओपन कॉन्टैक्ट्स हो जाएंगे। ऑलवेज रेड्यूस द बकोलिंगल विड्थ ऑफ योर क्राउन, so that will concentrate the forces over the implant parallel to the long axis of your implant. Second thing, crown cusp angles. नेचुरल क्राउन में क्या डॉक्टर क्या बोलता है? कार्विंग अच्छे से चाहिए नेचुरल इसमें, बस इम्प्लांट में वो नहीं चलता है। इम्प्लांट में फ्लैट ऑक्लूजन चाहिए। फ्लैट भी एकदम फ्लैट भी नहीं बट लिटिल बिट फ्लैट। दिस शुड नॉट बी एनी शार्प cusp angle that will create the lateral slopes and again that will deflective contact of the lateral forces over the implants. Okay. ऑक्लूजल कॉन्टैक्ट पोजीशन, देयर इज कॉल्ड एज लिंगुलाइज ऑक्लूजन। बाकी दिन में आप सब तरफ ऑक्लूजल कॉन्टैक्ट देते हैं इम्प्लांट में, लेकिन इम्प्लांट की जहाँ पे बॉडी है उसके ऊपर ही आपका ऑक्लूजल कॉन्टैक्ट आना चाहिए। इतना तो कर सकते हैं ना बिल्डअप के वक्त, तो ऑक्लूजल कॉन्टैक्ट आपका सेंटर में आना चाहिए प्रॉपरली। अगर स्क्रू रिटेन प्रोस्थेसिस है तो ऑक्लूजल कॉन्टैक्ट 1 मिलीमीटर फेरी में आने चाहिए स्क्रू रिटेन के। अगर सिंगल यूनिट है तो मार्जिनल रिस्ट पे आपके कॉन्टैक्ट ही आने चाहिए। मार्जिनल रिस्ट पे कॉन्टैक्ट आएगा तो आपको अगेन distal forces, major forces act होते हैं। But if it is a bridge or joint prosthesis, that is acceptable contacts over the marginal ridge also. Joint इसमें आप marginal ridge के ऊपर contact दे सकते हो। Clear? Implant crown contour. Implant crown contour में ज़्यादा बल्कि नहीं होना चाहिए। Always you should avoid the cantilevers. आपने एक ही कैंटिलीवर पता है, distal cantilever। पूरा concentration अपने distal cantilever के ऊपर होता है। उसके बारे में डॉक्टर से डिस्कस करते हैं। वर्टिकल कैंटिलीवर, बकल कैंटिलीवर, लिंगुअल कैंटिलीवर, मेजल कैंटिलीवर, डिस्टल कैंटिलीवर, दैट विल अफेक्ट द इम्प्लांट्स। तो ऑलवेज टेक केयर ऑफ द इम्प्लांट कैंटिलीवर्स आल्सो। दीज आर द ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर, बाकी तो डॉक्टर्स देख लेगा। क्लियर? ऑक्लूजन। नाउ इज द टाइम टू डिलीवर अ प्रोस्थेसिस। अपन क्या करते हैं प्रोस्थेसिस डिलीवर करते वक्त? पैक करके भेज देते हैं। कौन से कंपोनेंट यूज़ किए, क्या यूज़ किए, उसकी इन्फॉर्मेशन बाद में 2 दिन बाद ना आपने को पता रहती है ना डॉक्टर्स को पता रहती है। हम लोग भी इनिशियली ऐसे ही करते थे, तब नॉलेज नहीं था कि फ्यूचर में क्या होने वाला। सपोज मल्टीविट अपॉइंटमेंट यूज़ किया डॉक्टर ने, ठीक है, उसका रिकॉर्ड कुछ भी नहीं, 5 साल के बाद पेशेंट गया, स्क्रू टूट गया सर। अभी मल्टीविट अपॉइंटमेंट के वेरिएबल्स कितने बताया मैंने? हेक्सागोनल डायरेक्शन 6 डायरेक्शन में बैठेगा। ओके, एंगल्स 17 डिग्री 30 डिग्री, कुछ कम काफ़ी एंगल्स है। तो इतने डायरेक्शन, इतने जिंजावल हाइट्स अलग अलग है, तो इतने वेरिएबल्स आपको चेक करना पड़ेगा पेशेंट में वही प्रोस्थेसिस बिठाने के लिए। एक टूट गया निकालो, इतनी सारी इन्वेंट्री, ये लगा के देखो, फिर प्रोस्थेसिस नहीं बैठे, लगा के देखो। अगर आपके पास रिकॉर्ड है कौन से कंपोनेंट यूज़ किए, 10 साल के बाद भी पेशेंट आए, मोलार के लिए मैंने ये कंपोनेंट यूज़ किया था, रिकॉर्ड निकाल दिया। इम्प्लांट का तो रिकॉर्ड रखते हैं, उसके साथ ये रिकॉर्ड गार्ड भी देना है डॉक्टर्स को। उतना कंपोनेंट निकाल दो, वहाँ पे लगा दो, खत्म। जब लैबोरेटरी में जब प्रोस्थेटिक कंपोनेंट्स यूज़ करें वो केस के लिए, तो उसका एक रिकॉर्ड बना दो और डॉक्टर के लैब कार्ड उसके साथ भेज दो। हम लोग सब डॉक्टर्स के कार्ड भेजते कि ये प्रोस्थेटिक कंपोनेंट हमने यूज़ किए हैं, वो अपने फाइल को लगा देते। फ्यूचर में कभी पेशेंट आ गए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्लियर? अभी ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सुबह ऐसा था, अभी यहाँ पे। तो इम्प्लांट प्रोस्थेसिस इज लाइक दिस फॉर अस, इज अ मनी मेकिंग बेंच। सर तो सिरेमिक कितना 10 साल करो, 650 के ऊपर कोई नहीं देगा। इम्प्लांट में मोनोपोली, आज भी 2000 बोलेगे तो डॉक्टर देगा। ओके, मग सोपा आहे ना आता? इम्प्लांट प्रोस्थेटिक इज नॉट डिफिकल्ट। एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? सब समझ आ गया? फिर कुछ समझ में नहीं आएगा घंटे में। आप पूछ सकते हैं, मराठी में पूछो, हिंदी में पूछो, इंग्लिश में पूछो, एनी लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज, बाकी लैंग्वेज नहीं आती मुझे। ओके, थैंक यू।